Very good evening to everyone. Let's resume our session. Let's resume today's overall program and let's begin our second session for today, for which we are very happy and delighted to have Mr. Sharad Kumar Sant with us, who is serving as a deputy registrar here at the University of Delhi. You've already seen him before here with our finance officer, and he was also kind enough to pitch in while answering some of your questions with the finance officer. So that it is amply clear that he's someone who understands rules, regulation, especially with regard to finance, but not just with regard to finance. Right now, he's working in that capacity in the university here. But before this, he has a very long experience of more than 18 years in various departments of the university, including establishment teaching, non-teaching, where he has been serving for, he has served the institutions of higher education for more than 18 years. And he has also worked as a statistical officer at the Jamia Millia Islamia University. But I think what would also be useful to mention about him is that he's somebody who is he has earned, I think, quite some valuable degrees in terms of studying business administration, economics, and then computer science as well. He has a master's in not just economics, but also computer science applications. Also, I didn't know, sir, this about you, that you've also done your MPhil. So maybe it's time to now enroll for PhD, perhaps. So, but you're amongst the lucky few who got this degree, because now, of course, we know that in the National Education Policy 2020, we have now discontinued that. But today he is going to talk about automation in financial administration, which I think is or must be of much interest to most of you, because all of you must be working, people who are working in finance must be working on softwares, on tools, and therefore automation is something which I'm sure would interest you. With that, sir, I would invite you. Now, platform is all yours. Thank you. Thank you, madam. Good afternoon, all of you. Good afternoon. Good afternoon. जैसा कि पिछले सेशन में फाइनेंस ऑफिसर साहब ने आप लोग के 2-3 सेशंस लिए हैं और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सर ने बहुत चीजें आप लोग को बताई हैं, तो उसी संदर्भ में आगे थोड़ा सा मैं कंटिन्यूएशन कर रहा हूं। ऑटोमेशन इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंस जो है वो किसी भी सिस्टम की बैकबोन होता है। अगर फाइनेंस आपका स्ट्रांग होगा तो आपका सिस्टम उतना ही अच्छा रन करेगा। और ऑटोमेशन जो है वो आपके काम को और निखारने का काम करता है। आज के समय में जो रिक्वायरमेंट है आज के समय की ऑटोमेशन की बहुत ही ज्यादा है। आप जिस तरह देख रहे हैं कि अभी जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने डिजिटल पेमेंट का जिस तरह 2016-17 से स्टार्ट किया है। एक समय था जो हम डिजिटल पेमेंट की तरफ सोचते भी नहीं थे, उससे हम बहुत मतलब डरते थे या उसको यूज करने से हमें लगता था। आज की डेट में आप देखेंगे कि किसी आप विलेज में भी चले जाएंगे तो लोग वहां पे भी आसानी से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और करने की कोशिश करते हैं। अकाउंट एंड फाइनेंस में या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे ब्रॉडर चीजें हैं, तो मैं उतने ज्यादा में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय थोड़ा सा कम रहेगा हमारे पास। तो मैं कुछ जो हमारे मॉड्यूल्स हैं नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए जरूरी हैं, मैं उन 2-3 मॉड्यूल्स पे ही आपको आज का डिस्कशन करूंगा। हाँ, शेयर देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर अभी हम करंटली फाइनेंस एंड अकाउंट्स में 5 मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं। पहला मॉड्यूल मेरे पास जो अभी हम रोल मैनेजमेंट पे है, जो आपकी सैलरी से रिक्वायरमेंट को मीट करता है। दूसरा हमारा है फी मैनेजमेंट। इसमें हम इंटायर स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटीज इंक्लूडिंग फी
हम इस मॉड्यूल में कवर करते हैं। तीसरा मेरा मॉड्यूल जो रन हो रहा है वो बजट एंड अकाउंट्स का है। चौथा मेरा मॉड्यूल है जो आज की रिक्वायरमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बिल ट्रैकिंग सिस्टम। इसको मैं बिल ट्रैकिंग सिस्टम भी कहता हूं, वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम भी कहता हूं। जब हमने इनिशियली इसको स्टार्ट किया था तो ये वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से हमने किया था, फिर धीरे धीरे हमने इसको बिल ट्रैकिंग सिस्टम कर दिया है। ये आपकी बिल्स के मूवमेंट को बताता है। आज के समय में जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, हम लोग कोई भी चीज प्रोक्योर करते हैं, हमारे अब यूनिवर्सिटी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी सिस्टम में क्या होता है कि हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अब डिपार्टमेंट्स ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि हम कुछ प्रोक्योर कर रहे हैं, प्रोक्योर करने के बाद हम अपने बिल्स को प्रोसेस करते हैं, तो कम्युनिकेशन गैप जो बहुत रहता है, वेंडर्स बहुत बार शिकायत करते हैं कि हमें पेमेंट नहीं मिल रहा है या मुझे कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, मेरा क्या स्टेटस है। डिपार्टमेंट को ये पता नहीं चलता है कि मैंने बिल सबमिट किया, उसका क्या स्टेटस है। तो उन सारी परेशानियों का निजात दिलाने के लिए हमने ये बिल ट्रैकिंग सिस्टम, एक मॉड्यूल है, शॉर्ट मॉड्यूल हमने क्रिएट किया था। पांचवा मेरा मॉड्यूल है मेडिकल रिइंबर्समेंट। किसी भी संस्थान में मेडिकल रिइंबर्समेंट या जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। रीजन ये कि देखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट कोई अपनी इच्छा से नहीं लेता है, बहुत ही जरूरत जब पड़ती है तभी वो मेडिकल लेता है। और मेडिकल लेने पे क्या होता है कि अब उसका क्लेम है, तो हम क्लेम प्रोसेस को जितना स्मूथ कर सकें वो इस मॉड्यूल में हमने कवर करने की कोशिश की है। जो अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं पिछले तकरीबन इसको 3 साल से, हम 3 और 4 चौथा साल होगा जिसको हम परफेक्टली रन कर रहे हैं, और अब हम इसमें पीएफएमएस को भी इंटीग्रेट करने वाले हैं। जो आने वाले 2-3 महीने के अंदर इस मेडिकल रिइंबर्समेंट में हम पीएफएमएस को भी इंटीग्रेट कर देंगे। उस इंटीग्रेशन से क्या है, जो पेमेंट वाला प्रोसेस है वो और फास्ट हो जाएगा। अभी तो यहाँ पे सिर्फ प्रोसेसिंग है, मेडिकल रिइंबर्समेंट वाले में मेरी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है, पेमेंट नहीं होता है। पेमेंट के लिए मुझे पीएफएमएस पे जाना पड़ता है, तो उस पार्ट को मैं इससे इंटीग्रेट जब कर दूंगा तो मेरा पेमेंट वाला प्रोसेस भी 1 से लेके 10 तक अगर मैं स्केल में रखता हूं तो मेरा 10 पॉइंट जो है भी मिसिंग है। उस 10 पॉइंट को मैं इसमें अगर पीएफएमएस को इंटीग्रेट कर देता हूं तो मेरा 10 पॉइंट कवर हो जाएगा। तो जब वो एम्प्लॉय फिल कर रहा है और एंड पे जो पेमेंट कर रहा है, वो बटन दबाते ही इमीडिएटली जो एम्प्लॉय है उसके अकाउंट में पैसा रिमीट हो जाएगा जो उसने अपना क्लेम किया है। ठीक है, तो इसमें पेरोल मैनेजमेंट जो है नॉर्मली सभी संस्थानों में हम छोटे से मॉड्यूल से स्टार्ट कर रखा है, मेरे को जहां तक जानकारी है आप सभी ने किया होगा, क्योंकि बिना ऑटोमेशन के, बिना उसके आप सैलरी डिस्बर्समेंट नहीं कर पाएंगे। आज के समय में हमने देखा है कि पीएफएमएस से हम सैलरी डिस्बर्समेंट कर रहे हैं, बैच फाइल बना के कर रहे हैं, लेकिन पीएफएमएस में सारी चीजें नहीं है। तो हमने जो अपना पेरोल मैनेजमेंट बनाया है, इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे जितने भी आपके हेड्स होते हैं उनको हमने कवर्ड किया है। जो आपकी बेसिक सैलरी से लेके आपका इनकम टैक्स तक का जो मॉड्यूल है वो सारे इसमें कवर्ड हो रहे हैं। इसमें हमने आपका जीपीएफ भी लिया हुआ है, हमने आपका उसको पेंशन भी लिया हुआ है, हमने आपको उसमें एनपीएस भी लिया हुआ है। इनकम टैक्स फॉर्म 16 भी आपका ऑटोमेटेड जनरेटेड होगा। जैसे जैसे आपकी मंथ की सैलरी डिडक्ट होती जाएगी, सैलरी रिलीज होती जाएगी, फॉर्म 16 आपका अपडेटेड होता जाएगा, और एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल एम्प्लॉय के डैशबोर्ड पे वो सिंगल क्लिक पे अपना फंड का स्टेटस, अपना फॉर्म 16, अपनी सैलरी जो उसे पूरे साल में जो मिली है वो एक सिंगल क्लिक पे देख सकता है। जिसके लिए नॉर्मली हमें अपने फाइनेंस सेक्शन में जाके पता करना पड़ता है कि भाई मेरी कितनी डिस्बर्समेंट है, मेरा क्या क्या डिडक्शन किया है, क्या मेरी इनकम आपने ऐड की है, क्या डिडक्ट की है। इसमें क्या है कि आप एटीसी में जो आप सेविंग्स देते हैं वो सेविंग्स भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। उस अपलोड से क्या है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन तो हो गया, डॉक्यूमेंटेशन से क्या है कि वो इंटरलिंक हो जाएगी चीजें, तो आपने जो सेविंग क्लेम कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली वहां ऐड डिलीशन हो जाएगा। और ये ऑथराइजेशन एम्प्लॉय के पास है कि वो अपनी जो भी सेविंग्स करना चाहे वो इसमें ऐड करा ले। तो अभी ये मॉड्यूल मैं अभी आपको इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी मेरा टैक्सेशन का काम चल रहा है, तो लाइव मैं इस पे अभी नहीं दिखाऊंगा। अभी मैं आपको बिल ट्रैकिंग सिस्टम और मेडिकल रिइंबर्समेंट सिस्टम के बारे में इस सेशन पे फोकस करूंगा। वो नहीं है इसका।
कीबोर्ड देना यार, कीबोर्ड देना, कीबोर्ड कंट्रोल दबा दूं आप पे एक बार। देखिए ये हमारा बिल ट्रैकिंग सिस्टम, बिल मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अभी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इसका मेनली जो फोकस है और मेनली पर्पस जो है वो ये है कि वेंडर को उसके पेमेंट का स्टेटस, डिपार्टमेंट को उसके अपने बजट का और जो उसने बिल सबमिट किया उसका स्टेटस वो डैशबोर्ड पे जाके चेक कर सकता है कि ओरिजिनेट जहां से हुआ है और एंड तक पूरा प्रोसेस को अपना मॉनिटर कर सकता है कि उसने जब बिल सबमिट किया और जब उसको फाइनल पेमेंट हुआ है, ये पूरी साइकिल जो है वो अपने डैशबोर्ड पे डे टू डे ट्रैक कर सकता है कि मैंने जो बिल सबमिट किया है, डिपार्टमेंट से सबमिट किया है, फाइनेंस तक जाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में बिल की मेरी स्टेटस क्या है। फाइनल जब पेमेंट होगा वेंडर को, तो वेंडर को कंफर्मेशन भी जाता है। वेंडर को कंफर्मेशन में जाएगा उसने एक्स अमाउंट क्लेम किया था और एक्स वाई आइटम उसने सप्लाई किया है, तो ईमेल पे कंफर्मेशन वेंडर को जाता है कि उसने ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को, इस डिपार्टमेंट को ये आइटम सप्लाई किया था जिसका उसको ये पेमेंट मिल गया है। जब उसको ईमेल रिसीव होगा उसी दिन इवनिंग में उसको पेमेंट होगा, रियल टाइम पे पेमेंट नहीं है, क्योंकि पीएफएमएस लिंक और आरबीआई अकाउंट, पीएसए अकाउंट के कारण जो है पेमेंट जो रियल टाइम पे नहीं हो पाता है, थोड़ा सा समय लेता है। वो लेता है समय वेरिफिकेशन पार्ट, चाहे वो आरबीआई हो चाहे वो आपका इन हाउस बैंक हो, दोनों तरीके से अगर डीएससी से आप पेमेंट कर रहे हैं तो दोनों में एक गैप अप टाइम होता है जो चेक करता है इस चीज को कि आपका पेमेंट, जो पेमेंट अथॉरिटी है उसी ने ये पेमेंट रन किया है कि किसी और ने किया है। तो ऑथेंटिकेट करने के लिए वो 1-1.5-2 घंटे का जो समय होता है वो बैंक्स लेती है, चाहे वो आरबीआई हो चाहे वो आपका बैंकर हो, इन हाउस बैंक। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव जो है आपके स्क्रीन पे मैंने शेयर किया हुआ है। विजुअल है सभी को? सॉरी सर, पर स्लाइड चेंज नहीं हुई है स्क्रीन पे। अब आ रहा है? नहीं सर। व्यू नहीं कर रहा है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन, किसी को भी नहीं दिखाई लग रहा है। देखो स्क्रीन शेयर, हाँ स्क्रीन शेयर है, ऊपर आता है उसको, फिर तो आना चाहिए। अब दिख रहा है? सर मुझे तो नहीं दिख रहा है, बाकी लोगों को दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है। Yes sir, it's visible sides of the application. आपके नेटवर्क में कुछ इश्यू हो सकता है। नहीं सर, मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन करूं क्या? दोबारा ज्वाइन करें एक बार, तो हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो, इसलिए स्क्रीन आपको जो हमने शेयर की वो ना दिखाई दे रही हो। देखिए ये मैं एक आपको डेमो, जो मेरा वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम है, मैं छोटा सा डेमो आपको दे रहा हूँ कि ये एक साइकिल जो है, लाइफ साइकिल जो इस वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम की चलती है वो कैसे चलती है और इसके बेनिफिट आपको कैसे होंगे। ये मैं एक आपको साइकिल जो है वो डेमो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप थोड़ा सा इसको देखिएगा।
ये मेरा होम पेज है जहां से मैं लॉग इन करूंगा। डिपार्टमेंट्स को हमने क्या किया है कि डिपार्टमेंट्स को हमने जो उनका ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो हमने ऑथराइज किया हुआ है और उसको हम वैलिडेट कर देते हैं। वैलिडेशन की पावर मेरे पास है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डायरेक्टर और जो भी अथॉरिटी हो, जो एचओडीज हैं डिपार्टमेंट्स में, वो एक ऑफिशियल ईमेल आईडी हमें कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंस को। फिर फाइनेंस उस ईमेल आईडी के अगेंस्ट उसको पासवर्ड वैलिडेट करके पास ऑन करता है, जिसके थ्रू इस पे वो लॉग इन करेगा। जब लॉगिन करता है, लॉगिन वो जब भी कर सकता है जब हम उसका अकाउंट को वैलिडेट कर देंगे। जब तक हमने उसका अकाउंट को वैलिडेट नहीं किया है, वैलिडेशन से पहले फाइनेंस चेक करता है कि जो अथॉराइज पर्सन है उसी ने ये भेजा है कि नहीं भेजा है। जब तक उसका ईमेल कंफर्मेशन नहीं होता है, फाइनेंस उसको वैलिडेट नहीं करता है, और विदाउट वैलिडेशन वो आगे इस पे गो थ्रू नहीं हो सकता है। आफ्टर वैलिडेशन डिपार्टमेंट अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करता है। हमने इसमें सारे डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया है, और जो किसी यूनिवर्सिटी या संस्थान में अगर कोई नया डिपार्टमेंट आ रहा है तो उसमें एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। ये जो भी मॉड्यूल है ये हमारा इन हाउस बना हुआ है। आप लोगों को मैं बता दूं, ये दिल्ली विश्वविद्यालय फाइनेंस और हमारी जो टेक्निकल टीम है DUCC की, ये पूरा का पूरा जितने भी मॉड्यूल आपको मैं दिखाऊंगा ये हमारे इन हाउस है। हमने कहीं भी किसी से इसमें वो कुछ भी नहीं किया है, ये हमारे अपने लोगों का बनाया हुआ है। हमारी अपनी लोकल टीम है जो इन हाउस इस पे वर्क कर रही है, और इसको डे टू डे रनिंग होने के बाद इसमें जो भी मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट आ रही है, लोग जैसे जैसे इसको ऑपरेट कर रहे हैं, उसके बाद जो जो सजेशंस आते हैं उन सजेशंस को हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और फर्दर हम इसको और अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इसमें सारा डिटेल डिपार्टमेंट भरने के बाद सबमिट कर देता है। अभी मैं आपको रियल टाइम पे भी दिखाऊंगा। अब देखिए पहला पेज पे डिपार्टमेंट जो है अपने आप को रजिस्टर कर लेता है। रजिस्टर करने के बाद इसका मेन फंक्शन अब स्टार्ट होता है। डिपार्टमेंट जो इसमें परचेस ऑर्डर क्रिएट करेगा, उसने जो भी उसे सामान खरीदना है, जो भी उसने सामान खरीदा है उसका यहाँ पे परचेस ऑर्डर क्रिएट करेगा। जैसे सपोज आज की डेट में हम जैम से सामान खरीदते हैं, जैम से आपका इनवॉइस जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है और आपके मेल पे अटैच होके आ जाता है। आपको क्या करना है, वो परचेस ऑर्डर का जो नाम नंबर है वो आप यहाँ पे आपको देना है, जो आपका जैम ने क्रिएट किया है ऑटोमेटेड, वो आपको यहाँ पे देना है। डेट ऑफ परचेज डालना है, वेंडर का नाम डालना है, वेंडर का एड्रेस डालना है। जो आपका पांचवा और छठा कॉलम है वेंडर्स ईमेल और वेंडर मोबाइल, अगर किसी वेंडर ने ईमेल और मोबाइल सप्लाई किया है तो यहाँ पे आप डाल दें। अगर उसने नहीं दिया है तो आगे वैलिडेशन के लिए वो वेंडर के पास जाएगा, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट है ईमेल और मोबाइल की। क्योंकि जब हम पेमेंट करेंगे तो एक SMS उसको जाएगा कि आपका इस आइटम का इतना पेमेंट था जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस डिपार्टमेंट ने आपको कर ये दिया। तो बोला था मैम को डायरेक्ट फोन करेंगे। मेरे को सारा टाइम ये लोग डायरेक्ट फोन करते हैं। एग्जामिनेशन मैम का क्या मतलब है? एग्जाम ब्रांच, ये एग्जाम ब्रांच से आया, नॉर्थ कैंपस एग्जाम ब्रांच। हाँ, एक बार वहां जाके ना डीलिंग है जिनके इनके नंबर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आइटम आप देखिए, आइटम्स टू बी प्रोक्योर्ड। यहाँ पे आपको वो आइटम जो भी आपने प्रोक्योर किया उसकी नरेशन डालना है। जो भी आपने कंप्यूटर परचेज किया है, प्रिंटर परचेज किया है, और भी कोई सर्विसेज लिए वो डालनी है। नंबर ऑफ क्वांटिटी डालनी है, जो भी आइटम्स आपने किया उसका अमाउंट डालना है। अमाउंट डालने के बाद आपको ऐड करना है। जब आप ऐड कर देंगे, ऐड के बाद आपकी नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी और आपका एक रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद सिस्टम ऑटोमेटेड एक OTP जनरेट करेगा। ये ऑटोमेटेड OTP है जो आपके पास होगा और वेंडर के पास जाएगा। अभी मैं बता रहा हूं ना, इसमें यही है। ठीक है, अब इसमें हमने वेंडर को ऑथराइजेशन क्यों किया हुआ है? वेंडर को इसलिए किया है कि अगर जो हमने क्रेडेंशियल उसके फिल किए हैं उसमें कोई गलती हो तो वेंडर उसको अपडेट कर सके। हो सकता है हमने उसका अकाउंट नंबर फिल किया है, वो अकाउंट नंबर मिस हो गया हो हमसे, उसका ईमेल डाला है वो गलत हो गया हो, अमाउंट में कुछ एरर हो, या उसने सप्लाई किया मैंने कुछ और डाल दिया हो। तो जब यह रिकॉर्ड आप ऐड कर देंगे, ईमेल वेंडर का डाल देंगे, तो ये कंफर्मेशन के लिए एक जो है वो वेंडर के पास भी लिंक जाएगा।
एक आपके डैशबोर्ड पे आएगा, डिपार्टमेंट इसको जब चाहे तब अपडेट भी कर सकता है। इस पूरे पोर्शन को डिपार्टमेंट जब चाहे उसे अपडेट का ऑथराइजेशन है, जब तक वो सबमिट फाइनली नहीं करेगा। जब वो फाइनल सबमिट कर दिया, ऑथराइजेशन डिपार्टमेंट का कट हो जाएगा, उसके बाद वो मॉडिफिकेशन किसी भी तरीके का इसमें कुछ नहीं कर सकता है। दूसरी इसमें एक इंपॉर्टेंट आपको मैं चीज बताऊं, जो भी इनवॉइसेस हैं इस पे स्कैन कॉपी अपलोड होती है, उससे एक फायदा ये है कि आपका लाइफ टाइम एक रिकॉर्ड, कभी क्या होता है कि आपका हर डिपार्टमेंट पे एक वीड आउट की पॉलिसी होती है कि 3 साल 5 साल 10 साल बाद आपको बिल को वीड आउट करना है, रिकॉर्ड्स को वीड आउट करना है, लेकिन ये सिस्टम में आपका लाइफ टाइम बिल इनवॉइस जो है वो आपका ओरिजिनल स्कैन पड़ा है। हम जब चाहे आपको देख सकते हैं, डिपार्टमेंट जब चाहे देख सकता है। कभी होता है ना, जैसे किसी का बिल गुम हो गया तो हम डुप्लीकेट बिल की बात करते हैं, डुप्लीकेट वेंडर से मंगाते हैं, तो इसमें आपका जो बिल है, जो स्कैन कॉपी इसमें पड़ी हुई है, वो लाइफ टाइम आपके पास अवेलेबल रहेगी। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, डेटा जब आपके हार्ड डिस्क भर जाए तो आप दूसरे हार्ड डिस्क में भी डेटा ले सकते हैं। डेटा स्टोरिंग की इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, ये प्रोसेस के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस पे हम जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया था, वो ईमेल वेंडर को चला जाएगा। अब जैसे ही डिपार्टमेंट ने उसको अपडेट किया, ये देखिए वेंडर को चला गया, वेंडर का नाम नॉक्स करके था, उनको ये डिटेल चला गया। परचेस ऑर्डर का स्पेसिफिकेशन जो डिपार्टमेंट ने अपडेट किया था, वो सारा का सारा वेंडर के पास चला गया। परचेस ऑर्डर नंबर आ रहा है, डेट ऑफ परचेस आ रहा है, अमाउंट आ रहा है, वेंडर का नेम आ रहा है। अब देखिए, वेंडर का ईमेल और वेंडर का मोबाइल, अब ये वेंडर यहां चाहे तो वो अपडेट कर सकता है, वो चेंज करना चाहे या कुछ भी करना चाहे वो यहाँ पे चेंज कर सकता है। एक हमने नीचे हाइपर लिंक दिया हुआ है, जब तक कोई, देखिए अब ये जो नीचे हाइपर लिंक आ रहा है ना आपको, ये जब क्लिक करेगा तो वैलिडेशन के लिए फिर डिपार्टमेंट में आएगा कि वेंडर ने ये अपडेट किया है। जब तक आप ऑथराइज नहीं करेंगे, वेंडर का चेंजेस एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि सामान आपने खरीदा है तो आप फाइनल अथॉरिटी आप हैं। जब तक कि वेंडर तो उसमें कुछ भी ABCD कर सकता है, अमाउंट भी चेंज कर सकता है, फाइनल अथॉरिटी आपके पास है। अगर यहाँ पे वो कोई भी चेंजेस करेगा तो दोबारा आप जब तक उसे अपडेट नहीं करेंगे, ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो वेंडर जब लूप में आएगा तो दोबारा वैलिडेशन के लिए डिपार्टमेंट में ईमेल आएगा, आपके डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर आपको अपडेट करना है तो अपडेट करेंगे, अगर एक्सेप्ट करना है जो भी उसने मॉडिफिकेशन किए, आपने एक बार देख लिया कि उसने जो मॉडिफिकेशन किए वो ठीक है, इन ऑर्डर है, अगर इन ऑर्डर है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए, अब वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी जो अभी मैंने आपको बोला वेंडर की, यहां पे जब तक उसको वेरीफाई आप नहीं करेंगे, तब तक वेंडर ने जो भी क्रेडेंशियल अपने अपडेट किए हैं वो आगे फर्दर नहीं होंगे। तो ये डिपार्टमेंट के अथॉरिटी है, जब तक वो इसको ओके नहीं करेगा उसका अपडेशन नहीं होगा। तो आपको लगता है जो उसने अपडेट किया वो ठीक है, यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करते आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, ये लास्ट वाला कॉलम आता है जो वेंडर के पॉइंट पे लास्ट अपडेशन है। इसमें हमने क्या क्या है, नॉर्मली वेंडर्स जो है ये देखने में आया है, जो इनवॉइस जनरेट करते हैं उसमें जो अकाउंट नंबर देते हैं, अगर वो किसी भी इंस्टीट्यूट में सप्लाई करते हैं, जब से GST आया है तब से वेंडर्स ने क्या किया है, एक 20 लाख रुपए तक की लिमिट है कि 20 लाख रुपए तक करेंगे तो GST के टैक्स से एग्जम्पशन उन्हें मिली हुई है, तो उनकी लायबिलिटी टैक्स की नहीं होती है, वो RCM में वो चार्ज में वापस ले सकते हैं गवर्नमेंट से। तो नॉर्मली वेंडर्स क्या करते हैं, वो अपना अकाउंट नंबर बदल देते हैं। एक इंस्टीट्यूशन में सप्लाई कर रहे हैं, वो 10 चीज सप्लाई कर रहे हैं, तो टैक्स की लायबिलिटी से बचने के लिए जैसे ही उनके टैक्स कंसल्टेंट बोलते हैं कि आपकी मियाद जो है 20 लाख के आसपास पहुंच रही है, साहब आप अकाउंट नंबर बदल दो, तो अकाउंट बदलते वो पूरी जो 18-19 लाख का जो लिमिट थी वो जीरो से फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ वैलिडेशन के लिए हमने किया हुआ है, एक वेंडर का एक ही अकाउंट वैलिडेट होगा जब तक कि फॉर्म का नाम चेंज नहीं करेगा, जिससे कल को टैक्स की लायबिलिटी ऑनस हमारे ऊपर ना आए। कल को GST काउंसिल अगर कोई नोटिस इशू करे तो वो एम्प्लॉयर को इशू करती है कि भाई टैक्स की लायबिलिटी आपने चेक क्यों नहीं की, क्योंकि
टैक्स में जीएसटी में नियम ये कहता है कि एक संस्थान को 20 लाख से ऊपर के अगर सप्लाई करेगा तो टैक्स की लायबिलिटी में आ जाएगा। तो नॉर्मली वेंडर्स, जो छोटे वेंडर्स, बड़े वेंडर्स इस तरह की चीजें नहीं करते हैं। छोटे वेंडर्स जो हैं मल्टीपल सप्लायर, मतलब मल्टीपल चीजों को सप्लाई करते हैं, ये देखने में आया है। इसलिए हमने ये वाला पोर्शन जो है एडिशन के लिए डाला था कि वो एक रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लग जाए, जिससे वो जब वो मॉडिफिकेशन पे आए, क्योंकि हमने मॉडिफिकेशन को अलाउ नहीं किया है, तो वो चाह के भी अपना अकाउंट नंबर अगर इनवॉइस पे चेंज करेंगे, लेकिन मेरा सिस्टम उनका इनवॉइस में अकाउंट नंबर कुछ और बताएगा, तो मैं वैलिडेट यहाँ पे उस अकाउंट को करूंगा। तो नॉर्मली वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। तो एक दो बार वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली है, तो अपना अकाउंट वो ठीक कर लेते हैं और जो टैक्स की लायबिलिटी है वो बेयर करने को तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, अब लास्ट वाला कॉलम जो है वो डिपार्टमेंट को फिल करना है, जो अभी मैंने आपको बताया था। प्लेस ऑफ सप्लाई जो आपका डिपार्टमेंट होगा वहां पे आपको डालना है, सर्विसेज जो आपने खरीदी हैं वो, और देखिए यहां पे जो मैं अभी आपको बोल रहा था, अपलोड बिल, आपको स्कैन बिल की कॉपी यहां पे अपलोड करनी है। ये यहां पर अभी आपको दिख रहा होगा 5 MB, अभी हमने 5 MB से बढ़ा के 100 MB कर दिया, तो 100 MB तक की कोई भी फाइल आप इसमें अटैच कर सकते हो। ये डेटा आप बीइंग ए डिपार्टमेंट आप अपना देख सकते हो, जब चाहो तब आप देख सकते हो कि किस वेंडर ने मुझे क्या बिल सप्लाई किया था, वो यहाँ पे होगा। और फाइनेंस सेक्शन के पास तो इंटायर यूनिवर्सिटी का डेटा जो है वो डिपार्टमेंट वाइज देख सकता है, उसने कितने बिल सबमिट किए, किस वेंडर का क्या बिल था, बिल इनवॉइस की डेट क्या थी, क्या आइटम उसने प्रोक्योर किया है। तो ये रिकॉर्ड लाइफ टाइम रिकॉर्ड है जो आपके सिस्टम में प्रोक्योर हो जाएगा। एक बार स्टोर हो गया मतलब हो गया, यहां से एडिशन डिलीशन की गुंजाइश नहीं है। इवनली इस सिस्टम पे मैंने अपने पास भी ऑथराइजेशन एडमिन राइट्स में नहीं लिया है कि कल को एडमिन राइट्स लेके आप डेटा को पीछे से गायब कर दो या पीछे से मैनिपुलेट करके हम चेंज कर ले, तो इसमें राइट किसी के पास नहीं है। अब ये राइट किसी को सिस्टम ने नहीं दिया है मॉडिफिकेशन का। एक बार जो सिस्टम में चीज आ गई वो आ गई। रेक्टिफिकेशन के लिए आप फर्दर स्कैन जब करेंगे, कोई आपको लगता है कि गलत आ गया है, तो उसमें अपने हैंड रिटन में लिखेंगे, हेड की स्टैंप लगाएंगे और वो डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। तो वो करस्पॉन्डेंट जो पहले आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, बिल इनवॉइस सबमिट किया, उसी के साथ अटैच हो जाएगा। तो फर्दर जब वेरिफिकेशन हो रहा होगा तो वो पता रहेगा कि पहले आपने क्या दिया था, उसके कंटिन्यूएशन में फर्दर क्या चीज आई है और आपने उसको रेक्टिफाई किया है तो क्यों किया है, वो इसमें आएगा। अब देखिए, जब फाइनली आपने बिल सबमिट कर दिया, स्टेटस यहां पे आ जाएगा आपका। डिपार्टमेंट यहां पर सिर्फ अपना स्टेटस देख सकता है, उसने 1 बिल दिया है, 2 बिल दिए, 3 बिल दिए, 4 बिल दिए, किस चीज का बिल है वो यहाँ पे पूरा स्टेटस आएगा। अब नॉर्मली क्या है कि किसी भी संस्थान में फाइनेंस की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ए आइटम को ए ब्रांच देख रही है, बी आइटम को बी ग्रांट है, सपोज प्रोजेक्ट ग्रांट है, हमारी मेंटेनेंस ग्रांट है, या रिसर्च प्रोजेक्ट की और कोई सी ब्रांच है, एमजी का कोई और देख रहा है, रिकरिंग का कोई और देख रहा है, वर्क्स का कोई और ब्रांच देख रही है। तो यहाँ पे जिस ब्रांच में आप सबमिट करेंगे वहां पे एक ऑप्शन आपको देते हैं हम कि आप इसमें किस ब्रांच को ये बिल सबमिट कर रहे हैं। बजट एलोकेटेड, सभी डिपार्टमेंट को बजट एलोकेटेड है। बजट एलोकेशन के साथ साथ डिपार्टमेंट को ये बताया जाता है और उन्हें ये पता होता है कि ये खर्चा मेरे को किस हेड में बुक करना है और ये हेड जो है वो कौन सी ब्रांच से पर्टेन करता है। तो जब आप फाइनल बिल फाइनेंस को फॉरवर्ड करेंगे तो आपको जिस ब्रांच को सबमिट कर रहे हैं वहां पे आपको सेलेक्ट करना है। सपोज फाइनेंस 1 है या फाइनेंस 2 है या फाइनेंस 3 है, फाइनेंस 4 है, फाइनेंस 5 है। आपको एग्जामिनेशन का बजट हेड में कोई खर्चा बुक करना है, आपने फाइनेंस 6 को सेलेक्ट किया, तो जब आप सबमिट करेंगे तो वो जो खर्चा आपने सबमिट किया बिल, वो सिर्फ फाइनेंस 6 के डैशबोर्ड में दिखाई देगा, बाकी फाइनेंस की जो 10 ब्रांचें होंगी उनको नहीं दिखाई देगा। और आपको पता होगा कि ये बिल मैंने फाइनेंस 6 को सबमिट किया है और डैशबोर्ड जो फाइनेंस 6 का होगा वो डैशबोर्ड पे उसको दिखाई देगा। उसमें दिखाई देने का एक फायदा ये जो हमने एक्सरसाइज की है ये नॉर्मली इसलिए की है कि कभी कभी क्या होता है डिपार्टमेंट प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर पाते हैं ड्यू टू मैनी रीजंस।
तो नॉर्मली क्या होता है कि बिल फाइनेंस पे जाता है, फिर फाइनेंस ऑब्जेक्शन लगाता है, फिर डिपार्टमेंट जाता है, फिर डिपार्टमेंट से आता है, तो वो 15-20 दिन और महीनों की एक एक्सरसाइज हो जाती है। इसमें बिल फाइनली हार्ड कॉपी सेंड करने से पहले स्कैन कॉपी आपने अपलोड की है। स्कैन कॉपी अपलोड जैसे ही आपने की है, वो फाइनेंस के डैशबोर्ड पे पहुंच जाएगा। फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है इसमें कि जो उसने स्कैन बिल लगाया है, उस बिल के साथ साथ हमने इसमें ऑप्शन दिया हुआ है परचेज कमेटी के मिनट्स। सपोज उसकी प्रोक्योरमेंट जो उसने की है वो एक लिमिट से ज्यादा है, जिसमें हमें जेएफआर के प्रोविजंस को फॉलो करना है। नॉर्मली 15,000 और 25,000 से नीचे हमें कोई जरूरत नहीं है। एचओडी जो है इम्पावर्ड है, वो सर्टिफाई करता है, जो जेएफआर का प्रोविजन है उसके तहत वो लेता है। इससे ऊपर जो एलपीसी का प्रोविजंस है कि लोकल परचेज कमेटी आपको होनी चाहिए, उसके मिनट्स आपको स्कैन करने हैं, तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको स्कैन करके इसमें अपलोड करने हैं। वो अगर मिसिंग होंगे, फाइनेंस के डैशबोर्ड पे जब चला गया है तो फाइनेंस की जिम्मेदारी ये है, वो इस डैशबोर्ड पे देखेगा कि जो आपने बिल स्कैन सबमिट किया है इन ऑर्डर है कि नहीं। इन ऑर्डर है तो नो ऑब्जेक्शन का स्टेप को क्लिक करेगा और सबमिट कर देगा। जैसे ही वो सबमिट करेगा, एक मैसेज आपको आ जाएगा कि आपका बिल इन ऑर्डर है। इन ऑर्डर होते ही वो बिल आपको सबमिट करके प्रोसेस हार्ड कॉपी में भेज देना है कंसर्न फाइनेंस ब्रांच को। अगर उन्हें ऑब्जेक्शन होगा, वो वहां पे रेज करेंगे ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन क्लिक करने के बाद फाइनेंस के पास एक विंडो ओपन होती है। उस विंडो में उसके क्या ऑब्जेक्शंस हैं वो उस नरेशन में डालेगा कि आपने एलपीसी के मिनट्स नहीं लगाए हैं, या आपने ये प्रोक्योरमेंट को फॉलो नहीं किया, या जेएफआर के ये प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया। तो जैसे ही वो फाइनेंस सबमिट करेगा, वो इमीडिएटली कंसर्न डिपार्टमेंट के डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट करेगा उसका ऑब्जेक्शन। अब आपको दोबारा से फिर एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप उस ऑब्जेक्शन को रिमूव करें कंसर्न डिपार्टमेंट। तो कंसर्न डिपार्टमेंट को क्या करना है कि जो फाइनेंस ने ऑब्जेक्शन लगाए हैं, ये प्रोसेस क्यों हो रही है? ये प्रोसेस देखिए ऑटोमेटेड है। पहले ये सारा साइकिल जो है फिजिकली मूवमेंट होता है। अब मेरा एक डिपार्टमेंट लोकेटेड है 2 किलोमीटर दूरी पे या बहुत डिस्टेंस पे है, क्योंकि नॉर्मली कुछ संस्थान ऐसे हैं जिसमें इन हाउस एक ही बिल्डिंग में सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत सारे संस्थान ऐसे जिसमें एक एक यूनिट बहुत बहुत दूर दूर है। तो उसमें वो आने जाने में इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि वो मैंने देखा है, जब तक हमने ये ऑटोमेशन या वेंडर मैनेजमेंट नहीं किया था, तो मूवमेंट में ही वो 10 दिन तक डायरेक्ट डिस्पैच से लेके और कंसर्न ऑफिस तक पहुंचने पे और वहां से वापस डिपार्टमेंट जाने में 15 से 20 दिन लग जाते थे। ऑब्जेक्शन रिमूव करके जब तक दोबारा पहुंचा तो 2 महीने हो गए। तो किसी भी पेमेंट को 2 महीने तो डिले वैसे ही चल रहा है। अब उसके बाद जब फाइनेंस प्रोसेस 15 दिन ले लिए तो 2 महीना 15 दिन तो वैसे ही हो गए, तो 60 दिन तो हमारे वो निकल गए और 15 दिन इधर निकल गए, तो आपका पेमेंट तो वैसे ही वो डिले हो गया। जब से जैम आया है, तो जैम में आपको देखिए इंस्ट्रक्शन साफ है कि 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना है। हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हर स्टेप पर एक टाइमलाइन फ्रेम करी हुई है कि डिपार्टमेंट को 48 घंटे के अंदर ये चीज करनी है। डिपार्टमेंट से फर्दर स्टेज पे जब आएगा तो कंसर्न ऑफिशियल को वो 48 घंटे में करना है। उसके बाद फाइनेंस ब्रांच को 48 घंटे में उस पर रेक्टिफाई करना है, और फाइनल जो पेमेंट ब्रांच है वो 48 घंटे में एक्ट करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो 10 वर्किंग डेज का है। 10 वर्किंग डेज में किसी भी जैम का पेमेंट जो है इनफोर्स हम कर रहे हैं कि 10 डेज में पेमेंट हो। अभी नॉर्मली वो 11, 12, 13, 14, 15 दिन तक पहुंच रहा है, लेकिन हमारी कोशिश और सभी संस्थानों की कोशिश ये होनी चाहिए ऑटोमेशन के थ्रू कि उसको जो गवर्नमेंट ने एक टाइमलाइन सेट की है, क्योंकि देखेंगे आपको एग्जाम पे ओएम गवर्नमेंट ने निकाला है 2018-19 में। ये कोविड जब स्टार्ट हुआ उससे पहले एक ओएम आया था कि 10 दिन से अगर ज्यादा डिले पेमेंट होगा तो आपको उसमें इंटरेस्ट, पेनल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा वेंडर को। अभी गवर्नमेंट ने उसे रिजिड होके इम्पोज नहीं किया है, ना ही किसी वेंडर ने आज तक क्लेम किया है, लेकिन अगर वेंडर क्लेम करता है तो उस संस्थान को वो इंटरेस्ट पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब देनी पड़ेगी तो वो इंटरेस्ट पेनल्टी कहां से लाएंगे? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी कि किसके पार्ट पे डिले है। डिपार्टमेंट जिसने प्रोक्योर किया उसके पार्ट पे डिले है, जो प्रोसेस कर रहा है उसके पार्ट पे डिले है, या जो पेमेंट कर रहा है उसके पार्ट पे डिले है। तो अब वो क्या है कि वो पूरी साइकिल अगर हम डिफाइन कर देंगे तो ठीक है, लेकिन अगर डिफाइन नहीं है तो आप किसको ऑनर्स दोगे? तो वो अभी गवर्नमेंट ने इम्पोज नहीं की है इस तरह की चीजें, लेकिन हम इस ऑटोमेशन से ये कर सकते हैं कि वो जो 10 दिन की डेडलाइन है 10 दिन ना हो के 12 या 15 दिन में अगर हो जाती है तो वेंडर भी खुश है और हमें भी एक खुशी है कि कोई भी प्रोक्योरमेंट हुआ तो उसका टाइमली पेमेंट। ऑटोमेशन क्या बहुत जरूरी इसलिए आज के समय पे हो गया है क्योंकि
जैसे जैसे समय बदल रहा है हम ऑटोमेटेड होते जा रहे हैं पेमेंट के मामले में। फर्दर देखें, जैसे कि पहले हम पेमेंट नहीं करते थे, या हम नेट बैंकिंग बहुत कम यूज, मैंने देखा बहुत कम लोग यूज करते थे। आज की डेट में आप देखिए हर दूसरे बच्चे के या घर में आप देखेंगे, हमारे अपने पे भी मोबाइल में वॉलेट लेके हम घूम रहे हैं। कैश आज हमारी पॉकेट में नहीं होता है, हमारे मोबाइल में कैश है। जब जरूरत हुई हमने फर्स्ट से बटन दबाया, फोटो खींची, पेमेंट हो गया। तो हम ये डिजिटल मूवमेंट, डिजिटल की तरफ जो हमारी शिफ्ट हुए हैं, इसके बहुत फायदे हैं। थोड़ा सा अलर्ट रहना होता है, लेकिन फायदे इसके बहुत हैं, नुकसान बहुत मिनिमम है। नुकसान वही है कि हम थोड़ा सा अगर दाएं बाएं हो जाते तो ही थोड़ा सा नुकसान है बटन दबाने में, अदरवाइज उसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है कि कोई किसी तरीके कुछ चीज हो। देखिए अब ये नेक्स्ट विंडो जो आई है, ये विंडो है, जब आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये सारा का सारा डिटेल फाइनेंस ब्रांच को फॉरवर्ड हो जाएगा, जो अभी मैंने आपको बताया। इसमें सारा क्रेडेंशियल जो आपने फिल किया था वो दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। वेंडर ने जो रिस्पॉन्स दिया है वो भी इसमें है। अगर वेंडर ने कोई मॉडिफिकेशन किया है तो आप व्यू वेंडर्स का जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें आप देंगे तो एक विंडो आपकी सेपरेट ओपन हो जाएगी। उस विंडो में जो भी उसने करेक्शन किया है या वैलिडेट किया है या अपडेट किया है वो आ जाएगा। अदरवाइज जो आपके पास डिटेल है, इनवॉइस जो आपके पास है और जो यहाँ फिल किया है, वो सारी डिटेल ठीक है कि नहीं। अगर ठीक है देन यू क्लिक इट, और ये चीज जो है, ये आपका पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो फाइनेंस ब्रांच के पास पहुंच जाएगा। देखिए जो अभी मैं आपको बता रहा था कि आपको डिटेल भरना है कि आपने ये प्रोक्योरमेंट जो किया है वो किस जेएफआर के प्रोविजंस में किया है। अब देखिए इसमें हमने किया हुआ लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के थ्रू। इसमें हमने सारे जितने भी नरेशंस हैं जेएफआर के प्रोविजंस है वो हमने सारे डाले हुए हैं जो डे टू डे वर्किंग में रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज इसमें हमने एक ऑप्शन अदर्स का दिया है, उसमें अदर्स में भी आप डाल सकते हैं कोई स्पेशल प्रोविजन जेएफआर का है जिसके थ्रू आपने प्रोक्योरमेंट या गुड्स एंड सर्विसेज ली है या और भी आपने वर्क्स का काम किया है तो वो इसमें ऑप्शन आता है। अब देखिए इसमें हमने डिटेल्स ऑफ स्टॉक दिया हुआ है, लिमिटेड टेंडर आपने प्रोक्योरमेंट कैसे किया है, अमाउंट है। अब देखिए आप किस ब्रांच को फॉरवर्ड कर रहे हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया था फाइनेंस 6 में फॉरवर्ड करना है, एग्जामिनेशन का खर्चा है या प्रोजेक्ट का खर्चा है तो प्रोजेक्ट ब्रांच जो भी फाइनेंस की आपकी देखती है उसको खर्च करना है। तो यहाँ पे आपको जिस ब्रांच को सेलेक्ट करना है वो यहाँ नरेशन पे आएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे टास्क बार ओपन हो जाएगा, उसमें जितनी भी फाइनेंस की आपकी ब्रांच है वो स्क्रॉल बार में आ जाएंगी। तो जिसको भी आपको सेंड करना है आपको वहां क्लिक करना है। जैसे इस केस में 3-1 में हमने फाइनेंस ब्रांच नॉर्थ कैंपस सेलेक्ट किया है और अमाउंट आ रहा है, ये डायरी नंबर आ रहा है। अच्छा देखिए अब इसमें डायरी नंबर हम क्यों दिया है, क्योंकि हमने पैरेलली एक डायरी का भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया हुआ है। दो चीजें पैरेलल चलेंगी, एक तो जो डायरी का मूवमेंट है आपका वो भी आप ट्रैक करना चाहें तो कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने एक डायरी मैनेजमेंट सिस्टम भी स्टार्ट किया है जो अभी हमारा पहले फेज में चल रहा है। अभी हम उसमें बहुत अपडेशन कर रहे हैं तो अभी वो उतना एक्टिव मोड पे नहीं आ पाया है, लेकिन आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी हम डायरी वाला जो डायरी और डिस्पैच का सेक्शन है उसको भी ऑटोमेशन मोड पे ले जाएं। तो ये हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ये डिटेल्स को आपको अपडेट करना है और सेंड कर देना है। जब इसको सेंड कर देंगे तो इस तरह की विंडो आपको दिखाई देगी डैशबोर्ड पे। अब देखिए डिपार्टमेंट ने भेज दिया, अब ये विंडो जो आ गई है फाइनेंस की जो कंसर्न ब्रांच है ना उसके डैशबोर्ड पे ही आ गया, आपने वहां से सबमिट किया। अब ये जैसे फाइनेंस ब्रांच हमने सेलेक्ट की थी 3-1, तो 3-1 के डैशबोर्ड पे ये आ गया है कि इंस्टीट्यूट न्यूक्लियर मेडिकल एंड अलाइड साइंसेज डिपार्टमेंट ने ये एक रेफरेंस नंबर है, परचेस ऑर्डर नंबर ये 1000 रुपए का इस डायरी के तहत उन्होंने हमें ये भेज दिया है। अब ये फाइनेंस ब्रांच के पास आ गया है। अब फाइनेंस ब्रांच का काम यहां से स्टार्ट हो जाता है। अब जब इस बिल को प्रोसेस करेगा तो फाइनेंस ब्रांच को अपडेट करना है इसमें। फाइनेंस ब्रांच ने जब क्लिक किया तो उसको ये विंडो ओपन हो गई। अब देखिए यहां पे एक बार फिर फाइनेंस के पास ऑथराइजेशन है, अभी भी इस स्टेज पे कोई भी मॉडिफिकेशन है तो फाइनेंस ब्रांच कर सकती है। मतलब हमने लास्ट विंडो तक एक ऑप्शन ओपन रखा है कि देखिए फाइनल जब पेमेंट होता है किसी को
वो पेमेंट गलत ना हो पाए। तो हो सकता है कि एक स्टेज पे छूट गया हो, 2 स्टेज पे छूट गया हो, तो कहीं ना कहीं हमने हर स्टेज पे एक विंडो ओपन रखी है कि वो करेक्ट कर सके फाइनल पेमेंट से पहले, क्योंकि एक बार पेमेंट हो गया वो रिवर्स का मोड नहीं है, एक बार हो गया तो हो गया। आपने क्लिक किया, जब तक आप क्लिक नहीं कर रहे हैं तब तक आपकी अथॉरिटी है, आपके हाथ में है। जिस समय आपने क्लिक कर दिया उसके बाद आपके ऑथराइजेशन खत्म, वो तो कंसर्न के पास पेमेंट चला गया, और एक बार पेमेंट चला गया तो फिर चला गया, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर तो म्यूचुअली अगर हम उससे बात करके कुछ कहें भाई हमारे पैसे लौटा दे। देखिए जो अभी मैंने आपको विंडो बताई थी ऑब्जेक्शन और नो ऑब्जेक्शन की, जो फाइनेंस ब्रांच है, जब फाइनेंस ब्रांच के पास ये विंडो में आता है तो यहाँ से वो ऑब्जेक्शन लगाना है या नहीं ऑब्जेक्शन लगाना है, वो यहाँ पे विंडो फॉल कर रही है। ये पोर्शन फाइनेंस ब्रांच के लिए है। जो मैंने आपको बताया था अभी कि आपके बिल में कोई डिस्क्रिपेंसी है, या आपने एलपीसी के मिनट्स नहीं लगाए, या प्रॉपर कंपीटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल नहीं लगाई, कुछ आपने बहुत बड़ा आइटम प्रोक्योर किया है, तो उसमें 2-3 चीजें आपको प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट अगर आपने नहीं लगाए हैं तो यहाँ पे फाइनेंस ब्रांच ऑब्जेक्शन आपको रेज करेगी। ये इमीडिएटली कंसर्न डिपार्टमेंट जो डीलिंग होगा, अथॉरिटी होगा कंसर्न डिपार्टमेंट की, उसके डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट करेगा। देखिए दूसरी चीज और आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, लास्ट मंथ तक हमने इसको मोबाइल से अपडेशन नहीं किया था, इस मंथ से हमने स्टार्ट किया इससे मोबाइल से। तो जो भी ऑथराइज एचओडी होगा, ऑथराइज पर्सन है, फाइनेंस ब्रांच से जैसे इस पे ऑब्जेक्शन या बिल प्रोसेस होगा तो एक अलर्ट मैसेज कंसर्न डिपार्टमेंट के एचओडी के एसएमएस पे जाएगा, जो मोबाइल हमारे रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है, कि इस बिल को आपने भेजा था, इसमें ये ऑब्जेक्शन रेज हुआ है, या ये बिल आपने भेजा था, ये बिल प्रोसेस हो गया। वेंडर के साथ साथ कंसर्न हेड को भी इन्फॉर्म जाएगा, और एक ईमेल जाएगा जो कंसर्न डिपार्टमेंट ने अपना ईमेल जो अपडेट हमारे रिकॉर्ड में है उस पर एक कंफर्मेशन ईमेल भी जाएगा। आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी जो अभी पिछले 2-4-6 महीने से देखने को मिली है, वो मिली है पीएफएमएस में। पीएफएमएस में पहले क्या होता है, नो योर पेमेंट में आप जाके किसी का आपको अकाउंट नंबर पता है तो आपने अकाउंट नंबर डाला और उसमें एक इमेज आती थी, वो आपने डाला तो आप उसको स्टेटस चेक कर सकते थे। अब पिछले 6 महीने से पीएफएमएस की सिक्योरिटी सिस्टम आप देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट की हैं चीजें, तो उसमें सिक्योरिटी फीचर्स आते जा रहे हैं। सिक्योरिटी फीचर आने के कारण क्या है कि अब पीएफएमएस में जिसका अकाउंट है वही इसको देख सकता है, क्योंकि वो उन्होंने पीएफएमएस वैलिडेशन जो है मोबाइल के ओटीपी से कर दिया है। तो जिसका भी अकाउंट नंबर आपको पता है, आप अकाउंट नंबर तक जा सकते हैं। अकाउंट नंबर के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे वो एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी उसी का होगा जिसका अकाउंट नंबर है। तो बहुत सारी परेशानी क्या आने लगी आज के समय में, बैंक से प्रॉब्लम में आ रही है कि बैंक ने अभी आरबीआई के नए नॉर्म्स आए हैं। नए नॉर्म्स आने से क्या है कि एक अकाउंट, क्योंकल देखिए संस्थान बहुत बड़े होते हैं, छोटे भी होते हैं, एक अकाउंट भी होता है, मल्टीपल अकाउंट्स भी होते हैं। एसबीआई ने और आरबीआई ने अब क्या कर दिया है कि एक अकाउंट पर एक से ज्यादा मोबाइल रजिस्टर नहीं करेंगे। अब संस्थान बड़े हैं, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, हमारे तो 100 से ज्यादा अकाउंट हैं। अब 100 अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए मुझे 100 मोबाइल नंबर चाहिए। अब इतने तो मेरे पास एसओस भी नहीं है या इतने ऑफिसर्स भी नहीं है कि मैं 100 मोबाइल को कैसे करूं। तो हमने आरबीआई से और एसबीआई से, हमारी जो इन हाउस बैंक है, उनसे हमने जब रिक्वेस्ट करी है, उनसे टाई अप किया है मैटर को, तो हमें वो एक अकाउंट पे 4 मोबाइल, मतलब एक मोबाइल पे 4 अकाउंट को हम लिंक कर सकते हैं ओटीपी के लिए। क्योंकि अब आप देखेंगे व्यूइंग के लिए भी आपको बिना ओटीपी के अपना आप व्यू नहीं कर सकते अकाउंट को। तो उससे क्या हुआ है कि आपने कोई पेमेंट किया वेंडर को, अब आप बताने की स्थिति में फाइनेंस ब्रांच भी नहीं हो पाती है कि उसका यूटीआर नंबर क्या है। अब वेंडर पूछता है जी मेरा पेमेंट हो गया है, पेमेंट हो गया तो मुझे यूटीआर नंबर बता दो जिससे मैं कंफर्म कर लूं कि आपका ही पेमेंट है। तो सारी परेशानी का निजात के लिए ये वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम पे आकर अगर पोर्ट करते हैं तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है। इससे क्या है कि उसे कंफर्मेशन है। देखिए एक्चुअल उसके अकाउंट में पैसे आने में समय है, 24 घंटे के अंदर पैसे आएंगे, लेकिन 24 घंटे पहले ही उसे एक अलर्ट मैसेज आ रहा है कि एक्स डिपार्टमेंट से आपने जो माल सप्लाई किया था उस एक्स डिपार्टमेंट ने आपका पेमेंट प्रोसेस कर दिया है, उसका अमाउंट ये है। तो जब उसके अकाउंट में पैसे आएंगे और वो मैसेज है, दोनों वो टैली कर लेगा, तो उसे पता रहेगा कि ये सप्लाई मैंने इस जगह, क्योंकि एक वेंडर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स पे सप्लाई कर रहा है। अब वो 10 जगह सप्लाई कर रहा है, उसे ये नहीं पता है कि मेरा ये पैसा कहाँ है, क्योंकि टैक्स काटने के बाद नरेशन में कुछ आता नहीं है।
जब आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट में नरेशन की विंडो इतनी बड़ी कोई भी बैंक ना आरबीआई टीएसए अकाउंट में दे रही है, ना एसबीआई देती है, ना और कोई बैंक देती है कि वो नरेशन में आप इतनी चीजें लिख दें कि इससे वो सामने वाले वेंडर को पता चल जाए कि मेरा किस चीज का पेमेंट है। इवनली जब हम अपने एम्प्लॉइज को पेमेंट करते हैं तो उसमें बहुत दिक्कत है। सैलरी के लिए जब हम सैलरी डिस्पर्स करते थे तो हम नरेशन में सैलरी डालते थे, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ, वो नरेशन भी हमारी एसबीआई नहीं कर पाती थी। हम डालते थे पीएफएमएस में, लेकिन जब एक्चुअल अकाउंट में आता था तो वो नरेशन में वो आता ही नहीं था। आरबीआई से फायदा ये हो गया कि अब आरबीआई में वो लिख के आता है संस्थान का नाम, आरबीआई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो कम से कम आपको ये तसल्ली होती है कि आरबीआई दिल्ली यूनिवर्सिटी से पैसा आया है, ये आरबीआई जामिया से आया है, ये आरबीआई आईआईटी से आया है, या जहां पे भी आया गए वहां से आया, तो एक आपको पता चल जाएगा मैं यहाँ गया था या यहाँ पे मेरा ये पेमेंट था तो मुझे ये मिला है। तो उस तरह की चीजों के लिए ये जो वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम है, बिल्कुल इस वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम में हमने एक चेकलिस्ट जो है वो इस पे होस्ट करी हुई है। वो चेकलिस्ट को बिल्कुल डिपार्टमेंट के हमने चेकलिस्ट से 12 से 15 पॉइंट्स हैं जो हमने वहां डिफाइन किए हैं। ये 15 पॉइंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर कि जैसे मान लीजिए फाइनेंस कैंपस में रहता हूं लेकिन ऑफिस में अवेलेबल नहीं, क्या ये वैसे ही प्रोसेस? बिल्कुल आप कहीं से भी प्रोसेस कर सकते हैं, जरूरी नहीं ऑफिस में, आप अपने मोबाइल से प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे मेडिकल रिम्बर्समेंट में आज की डेट में आप लोग कर रहे हैं ना, आप अपने मोबाइल पे अपना डेट अपडेट कर दीजिए, प्रिंट लिए और कर दीजिए। देखिए अभी हम ऑडिट से और टाई अप कर रहे हैं, अब क्योंकि मेडिकल में क्या होता है या इस तरह की चीजों में क्या होगा, फिजिकल बिल हमें रिक्वायर्ड है। मैं कोशिश करता हूं कि अवॉइड कर सके, लेकिन ऐसा कोई गवर्नमेंट ने प्रोविजन नहीं दिया है कि आप स्कैन बिल पे पेमेंट कर पाए। तो कुछ जगह लिमिटेशन है, तो हम ऑटोमेशन एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, उस लिमिट के बाद हमें फिजिकल मोड में आना ही पड़ेगा। लेकिन जो प्रोसेस है, जिस स्टेज तक हम ऑटोमेशन कर पाए, जिस स्टेज को स्किप करके स्मूथ काम को कर पाए, वो हमें करना है जी। ओनली बिल, जो पेमेंट ब्रांच है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के संदर्भ में आपको बता दूं, पेमेंट ब्रांच सपोज मेरे पास है, मैंने बिल पास कर दिया है सिस्टम में, मैंने ओके कर दिया, जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगा मेरा बिल पेमेंट ब्रांच में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। मैंने बटन दबाया और साइन किया, वो बिल्स का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, वो पेमेंट ब्रांच में गया। पेमेंट ब्रांच उस फिजिकल बिल पे क्या करेगा, आपका पेमेंट रन करेगा। पेमेंट रन वही आपका प्रोसीजर जो पीएफएमएस में होता है, वो पीएफएमएस में अकाउंट को वैलिडेट, ये पूरे प्रोसेस में अकाउंट वैलिडेट होके आ रहा है, वेंडर का पूरा डिटेल है उसमें, बिल अपलोड हो चुका है, उसका जो भी अकाउंट है वो फीड हो चुका है पीएफएमएस में, पेमेंट ऑफिसर के पास जाएगा, उससे सिर्फ वो अकाउंट नंबर उसका चेक करना है और बटन दबाना। बिल्कुल, देखिए इस जब आप ये पहला पार्ट जो आपका खत्म हो गया है, जो बताया गया है कि बिल्स में ऑब्जेक्शन और नो ऑब्जेक्शन की चीजों को रिजॉल्व करने के लिए, जो आपका एक ऑटोमेशन में क्या है कि प्रोसेस को फास्ट करे। बाकी जब वो फिजिकली कंसर्न डिपार्टमेंट ने फिजिकली उस कंसर्न फाइनेंस ब्रांच को बिल सबमिट कर दिया है, वो प्रोसेस जो है वो फिजिकल मूवमेंट में वैसे ही चलेगा, डीलिंग हैंड ने साइन किया है ना। डबलिंग किस चीज की? ना 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 ना, वो हायर अथॉरिटी के पास नहीं जा रहा है, वो कंसर्न ब्रांच तक ही सीमित है। हायर अथॉरिटी का देखिए इसमें इन्वॉल्वमेंट हर चीज के लिए अथॉरिटी नहीं कर सकती है, ये बिल जो है ब्रांच लेवल की चीजें हैं, ब्रांच लेवल की चीजों को हम अथॉरिटी को नहीं दे सकते। कंसर्न ऑफिसर के पास क्यों जाएगी? ब्रांच ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर इज ए कंपिटेंट अथॉरिटी, उसको हमने यह ऑथराइजेशन दे रखा है, उसे प्रोसीजर पता है, एक चेकलिस्ट इसमें पड़ी हुई है, उसे चेकलिस्ट देखनी है, वो प्रोसीजर को फॉलो किया है कि नहीं किया है, वो उसके एंड पे है। तो जो ऑब्जेक्शन वाला पार्ट होता था पहले, ऑब्जेक्शन कैसे लगेगा, ऑब्जेक्शन के लिए भी वो कंसर्न ब्रांच ऑफिसर तक जाएगा। सपोज एआरडीआर किसी ब्रांच में है,
तो ब्रांच ने ऑब्जेक्शन लगाया, वो सबसे होता हुआ डीलिंग हैंड से, असिस्टेंट से, एसओ से एआर, एआर से डीआर, डीआर से अगर जीआर है, जब उन्होंने ऑब्जेक्शन पे साइन किया, फिर वो साइकिल वापस गई, फिर वो वहां से डायरी होगा, फिर वो हेड को जाएगा। तो अब ये पूरे प्रोसेस में आप सोचिए कि एक ब्रांच से उठ के ऊपर तक आ रहा है और फिर जा रहा है, 3-4 दिन तो वैसे ही चले गए। वो चीज उसने ऑब्जेक्शन लगाना है, तो जैसे उसने क्लिक करेगा ऑब्जेक्शन कंसर्न डिपार्टमेंट को पहुंच गया है, उसने इमीडिएटली देखा ये ऑब्जेक्शन है, उसने तुरंत डाला, सबमिट किया, तो जितनी देर में सोचेगा उतनी देर में तो आपने रिजॉल्व कर दिया ना उस इश्यू को। जो 4 दिन का प्रोसेस था वो आपका घंटों में हो गया, क्योंकि जैसे ही हमने ऑब्जेक्शन रेज किया, एसएमएस कंसर्न हेड को चला गया, ईमेल कंसर्न डिपार्टमेंट को चला गया कि इस बिल पे ये ऑब्जेक्शन है। उसने फटाफट पढ़ा, फटाफट उसने टाइप किया, उसमें जो ऑब्जेक्शन लगाए तो उसने रिजॉल्व किए, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट स्कैन किए, अपलोड कर दिए, उसने भेज दिया। तो ये प्रोसेस ब्रांच लेवल पे ही खत्म हो रहा है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्शन नहीं है, फिर तो बिल पेमेंट है। उसके आगे जो जा रहा है फिजिकल मोड में, वो सिर्फ पेमेंट होने के लिए जा रहा है, क्योंकि वो आपकी हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड है। वो प्रोसेस, उससे पहले का प्रोसेस ऑटोमेटेड किया गया है। जो एक एक्सरसाइज होती थी यहां से वहां, वहां से एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, चौथी ब्रांच, ये नहीं वो लाओ, ये नहीं वो लाओ, उसको बचाने के लिए ऑटोमेशन में किया गया है कि वो टाइम को आप कम करें। और जब चीजें ऑनलाइन होती हैं तो जो रिप्लाई दे रहा है वो भी थोड़ा विजिलेंट होगा, क्योंकि वो स्कैन डॉक्यूमेंट कर रहा है, उस समय वो विजिलेंट होगा कि मैं क्या अपलोड कर रहा हूं। पहले तो कोई भी पेपर लगाओ भेज दो, चलो वो निकाला आ गया, अच्छा ये नहीं, दूसरी अप्रूवल, उसने पेज निकाला दूसरा लगा दिया। यहाँ इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। उसने स्कैन किया है तो उसे विजिलेंट होकर स्कैन करना है, और क्या डॉक्यूमेंट लगाना है उसे फर्स्ट जब वो इनिशिएट कर रहा है वहीं पे उसे ये सारी चीजें क्लियर करनी है, वो आगे के लिए नहीं है। तो ये सारी एक्सरसाइज जो है ब्रांच लेवल पे है। देखिए अगर हमने ब्रांच लेवल पे कोई भी सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया है ना, तो हर्डेल ऊपर नहीं आता है, हर्डेल जो है वो हमारे नीचे के सिस्टम में ज्यादा है। ब्रांच लेवल पे कि मुझे ये रिक्वायरमेंट थी, ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया, तो वहां पे हमने ऑटोमेशन कर दिया है कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आप फटाक से उसमें नरेशन डालिए कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, रूल ये कहता है, मुझे ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना था, आपने नहीं दिया। उसने लिखा, सबमिट किया, पहुंच गया, उन्होंने फट से उसको स्कैन किया, लगाया, सबमिट किया, आपके स्क्रीन पे डैशबोर्ड पे दिखाई दे जाएगा। आप उससे सहमत हैं, नहीं है फिर ऑब्जेक्शन लगाना लगाइए, और सहमत हैं तो आपने उसको ऑब्जेक्शन को रिमूव कर दिया। जैसे ही ऑब्जेक्शन आप रिमूव करेंगे, वहां से फिजिकल बिल स्टार्ट टू कंसर्न फाइनेंस ब्रांच फॉर पेमेंट, क्योंकि वो एक्सरसाइज जो आपकी थी R&D वो कर चुके हैं हम। पूरा R&D करने के बाद फाइनल पेमेंट के लिए आ रहा है। जो पहले फिजिकल मोड पे हम करने से पहले जो काम था ना, पहले फिजिकल मोड में था, उस फिजिकल बिल आने से पहले का जो एक्सरसाइज है वो ऑलरेडी हमने ऑनलाइन कर ली है। तो ऑब्जेक्शन या उस तरह की चीजें नहीं है, सिर्फ प्रोसेसिंग है। अब प्रोसेसिंग में आप मान लीजिए 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, कितना समय एक ब्रांच से पेमेंट ब्रांच तक हमें लेना है, 1 दिन लेना है, 2 दिन लेना है। तो जो वो एक्सरसाइज थी वो हमने कर्टेल करके आपका 2 या 3 दिन पे लाके खड़ा कर दिया, जो कि आज की डेट में जेम की रिक्वायरमेंट है कि आपको 10 दिन में पेमेंट करना है। तो वो जो 10 दिन की एक्सरसाइज या 15 दिन की एक्सरसाइज थी, मैंने उस टाइम को कर्टेल करके 3 दिन में लाके खड़ा कर दिया कि ये पेमेंट जो है वो आ गया, तो 72 घंटे के अंदर पेमेंट पार्टी को हो जाएगा। बिल्कुल सेव हो जाएगा। देखिए ये इसलिए फ्रीज उसमें ओपन करने का ऑप्शन है, वो फाइनेंस ब्रांच को अथॉरिटी है, एडमिन राइट्स हैं चेंज करने की। कंडीशन वही है कि उसने अकाउंट नंबर क्यों चेंज कर रहा है। जैसे अभी रिसेंटली कुछ समय पहले कुछ ब्रांच बैंक्स जो है मर्ज हो गई, मर्ज होने से अकाउंट तो वही रहा लेकिन ब्रांच के नाम चेंज हो गए, IFSC कोड चेंज हो गया, बहुत सारे नरेशंस चेंज हुए। उस केस में डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी नहीं है, डिपार्टमेंट उसको अपडेट फाइनेंस के थ्रू कराए। फाइनेंस को वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा कि किस रीजन से अकाउंट अपडेट हो रहा है या चेंज हो रहा है। वो जस्टिफाइड रीजन देगा तो आपको अकाउंट फाइनेंस ब्रांच जो है एडमिन के लॉगिन से वो उस अकाउंट को अपडेट कर। नहीं नहीं नहीं, देखिए यही तो खासियत है, जब से GST आया है ये सारी चीजें तो इसलिए कि आप वेंडर जो रजिस्टर्ड है वो अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है, आप मल्टीपल अकाउंट पे नहीं करना है। तो आपको टैक्सेशन की लायबिलिटी आपके ऊपर है, तो उन सब चीजों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने 1 अकाउंट 1 बिजनेस के लिए किया हुआ है। अब मल्टीपल वो आप कुछ भी करें, लेकिन फाइनल जो आप सप्लाई कर रहे हैं वो एक ही अकाउंट से करेंगे, क्योंकि आपका टैगिंग एक ही से है।
वो जैसे आधार नंबर नहीं होता है, आधार नंबर से एक अकाउंट से एक आधार लिंक कर दिया है, तो मल्टीपल लिंक नहीं हो सकते हैं, वो एक ही लिंक किया है, वो टैक्सेशन के पर्पज से गवर्नमेंट ने किया हुआ है। जो रेगुलेटर्स देखिए, रेगुलेटिंग बॉडीज जो हैं वो कुछ ना कुछ इस तरह की टर्मिनोलॉजी लाती हैं रेगुलेट करने के लिए कि सिस्टम को कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे उनको एक उसमें हम बांध के रखें। अगर हम बांध के नहीं रखेंगे वो फैल जाएंगे तो फिर वो सरकार उसको, या जो सिस्टम है बॉडीज हैं टैक्सेशन के बॉडीज, वो उसको कैसे ग्रैब करेंगी। तो कहीं ना कहीं वो कुछ जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज करके इस तरह की चीजें बांधने की कोशिश की जाती है किसी भी सिस्टम में। अभी मैं आ रहा हूँ मेडिकल वाले पे, अभी आता हूँ। देखिए अब ये लास्ट स्टेज पे हम आ रहे हैं। फाइनेंस ब्रांच ने जब बिल पास कर देगा, डैशबोर्ड पे आपके विंडो में ये आएगा लास्ट में, ये लास्ट आपका ऑप्शन आ रहा है, बिल पास बाय द फाइनेंस ब्रांच। जब फाइनेंस ब्रांच ने पास कर दिया, पेमेंट ब्रांच के लिए जब जा रहा है, तो यहाँ पे नरेशन स्टेटस में आपका दिखा रहा है, स्टेटस आपका बताएगा बिल पास बाय द फाइनेंस ब्रांच। किस फाइनेंस ब्रांच ने, वो उसके लॉगिन पे सामने ऊपर आएगा, फाइनेंस 3-1। ये कंसर्न डिपार्टमेंट का जो लॉगिन है, डैशबोर्ड है, उससे वो चेक करेगा तो उसने किस किस फाइनेंस के ब्रांच को भेजा है, वहां पे नरेशन में उसके सामने स्टेटस आएगा कि मेरे किस बिल का क्या स्टेटस है, क्योंकि आपके पास वेंडर आ रहा है। ये पूरी एक्सरसाइज में जैसे अब ये फाइनल कर देंगे, वेंडर के पास ईमेल चला जाए, कंफर्मेशन मैसेज कि आपका ये अमाउंट है, कि 1000 का अमाउंट था, इस परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट आपका ये पेमेंट हो गया, वेंडर का नाम ये है, डिपार्टमेंट जहां से पेमेंट हुआ है वो ये है, संस्थान का नाम उसके बाद में आता है। सर इसमें एक चीज होती है जी, कि जैसे कुछ फर्म, कुछ मतलब फर्म ऐसी होती है ना, प्रोप्राइटर नाम से अकाउंट खुला होता है और ये फर्म का नाम बताता है प्रोप्राइटर नाम से अकाउंट खुला होता है, तो वहां मैच नहीं होता कि प्रोफेसर जब ट्रांसफर करते हैं ना, देखिए बिल्कुल प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल आती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जो डाल रहे हैं वो उसकी फर्म का नाम डाल रहे हैं। जी जी। जब अकाउंट की बात आती है, अकाउंट में प्रोप्राइटर का नाम आएगा। जब सेकंड पार्ट हम आपको अपडेट करा रहे हैं ना, वो इसलिए करा रहे हैं, फर्म तो एक एक्स नाम से उसने रजिस्टर कर दिया, प्रोप्राइटर में उसके 2 लोग हैं या किसी और के नाम से XYZ के नाम से उसने अकाउंट ओपन कर रखा है, तो वहां पे हम अपडेट करने का आपको इसलिए और ऑप्शन दे रहे हैं, उस प्रोप्राइटर का नाम आपने डाल दिया। कंपनी का नाम तो कुछ और है, लेकिन प्रोप्राइटर उसका कोई है, तो प्रोप्राइटर का उसमें आपने अपडेट करना। बिल्कुल। देखिए PFMS में एक और हमें पेंशनर के केस में बहुत दिक्कत आ रही है, या नॉर्मल संस्थानों में भी दिक्कत आ रही है। हम बैंक से टेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैंक ने अभी तक कोई सूटेबल आंसर हमें नहीं दिया है। रीजन क्या है कि किसी भी अकाउंट में अगर 2 अकाउंट होल्डर है, ज्वाइंट अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट में क्या है कि सपोज मेरा एम्प्लॉय है, जैसे अब मैडम है, मैडम हमारा एम्प्लॉय है, तो पुष्पा मैडम का जब उसमें आएगा अकाउंट मैडम का और मैडम के हस्बैंड के नाम से है, 2 ज्वाइंट नेम है, मुझे पेमेंट मैडम को करना है। जब PFMS में वैलिडेट किया है मैंने एंट्री करके, वैलिडेट करने के बाद मैडम के हस्बैंड का नाम आ रहा है, अकाउंट नंबर सेम है। अब बैंक क्या करती है, नहीं नॉर्मली बैंक को करना चाहिए फर्स्ट नेम को लेना है, लेकिन बैंक में जम्बलिंग करते हैं, वो कभी फर्स्ट नेम लेंगे कभी सेकंड नेम लेंगे, तो सेकंड नेम लेते ही वो डीलिंग हैंड जिसने एंट्री करी है वो उसके हाथ रुक जाते हैं, सर ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, नाम कुछ आ रहा है, अकाउंट नंबर तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये नहीं है, तो ये परेशानी है। तो उस केस के लिए जो ज्वाइंट अकाउंट है, उस ज्वाइंट अकाउंट में हम अकाउंट नंबर चेक कर लेते हैं। अब क्योंकि रेगुलर पेमेंट हो रहा है तो नॉर्मली हम उस पेमेंट को रन कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा नहीं है, हम बैंक से एक सर्टिफिकेट लेते हैं या उस एम्प्लॉय से एक अंडरटेकिंग लेते हैं। बहुत से संस्थान है, अब किसी जिसको पेमेंट अथॉरिटी को कन्विंस नहीं हो पा रहा है इस चीज से, तो वो एक अंडरटेकिंग ले लेता है, भाई आपका ये ज्वाइंट अकाउंट है, तो लेकिन ये PFMS में दिक्कत है ज्वाइंट अकाउंट के केस में, कि वो जो वैलिडेट करता है अकाउंट को, उस समय वैलिडेशन में कोई भी फर्स्ट नेम ले लेगा। नॉर्मली वो जब आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है तो फर्स्ट नेम उसी समय रजिस्टर होता है, लेकिन बैंक का सिस्टम क्या है, वो भी ऑटोमेटेड मोड पे रहता है, तो वो जम्बलिंग करता रहता है, फर्स्ट नेम को सेकंड कर देगा, सेकंड को फर्स्ट कर देगा। कभी कभी ज्वाइंट अकाउंट में भी सिंगल सिग्नेचर से पेमेंट कर देते हैं, जबकि सिंगल सिग्नेचर से पेमेंट नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी बैंक कर देते हैं। RBI कहता है आइदर में मना किया है RBI, अगर ज्वाइंट है तो दोनों को सिग्नेचर करना है।
ऑपरेट करना, आइदर वाला मना कर दिया है, आप करके देख लीजिए जी। बहुत से चेक हमारे बाउंस हुए हैं लोगों के, जब दोनों के सिग्नेचर हमने कराए हैं, उससे हमने रिकवरी करी, तो रिकवरी के केस में यही था, ज्वाइंट नेम था, सिंगल ने कर दिया, वाइफ से करा दिया, वो बाउंस हो गया। तो डबल हमने सिग्नेचर कराए दोनों के ज्वाइंट में, तब वो वैलिडेट किया बैंक ने। तो ये कुछ चीजें हैं। ये किसी का माइक्रोफोन ऑन है, आप प्लीज अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। मैं दार्जिलिंग गया था ना, तो वहाँ पे ये जगह देखी थी दिखाइएगा जहाँ पे ये शूटिंग हुई थी ना इसके। अच्छा, लेकिन अभी ट्रेन चलती नहीं है। आनंद कुमार मिश्रा, आनंद कुमार मिश्रा जी, आप तो दार्जिलिंग गए थे, हमें पता चल गया, हाँ, लेकिन आप जो है अपना माइक्रोफोन म्यूट करिए। सॉरी मैम, सॉरी मैम। No, this is like this. We can see that parallelly, it's not just that you're doing something parallelly, but also the fact that you do not, you're disturbing the session. I'm sorry, but sorry would not be enough in these cases. Please, you have to act more responsibly. You're administrators. आगे से ध्यान रखूंगा प्लीज, थैंक यू। अब ये देखिए लास्ट में आप जो अभी मैं आपको बता रहा था, वेंडर का कंफर्मेशन, ये आपका मेल जो है वेंडर को, जो उसका प्रोसेस हुआ है, फाइनली उसको मेल चला गया है। अब इसमें पूरा क्रेडेंशियल, पूरी डिटेल आ रही है, परचेस ऑर्डर की स्पेसिफिकेशन आ रही है, उसका बिल प्रोसेस का डिटेल आ रहा है, किस दिन में पेमेंट हुआ है, वो उसका पूरा डिटेल आ रहा है। तो ये वेंडर को कंफर्मेशन मेल है। सेम मेल कंसर्न डिपार्टमेंट के हेड जो ईमेल हमारे डैश जो सिस्टम में रजिस्टर्ड है, एक ईमेल कंफर्मेशन उनको भी गया है, और एक एसएमएस जो अभी मैंने आपको बताया था, एक एसएमएस का हमने प्रोविजन क्रिएट किया है। एक एसएमएस कंसर्न डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, जो अकाउंट का मोबाइल नंबर इसमें रजिस्टर है, एक एसएमएस उनको भी जाएगा कि इस बिल के अगेंस्ट इतना अमाउंट पेमेंट हो गया है, थैंक्स। ठीक है, तो आज के समय में जो मैं आपको बता रहा था, पीएफएमएस में दिक्कत आ रही है। अब ये प्रोसेस ऑटोमेटेड करने से क्या है, जो वेंडर्स, देखिए छोटे संस्थान में तो चलो हमारा कम मूवमेंट हो रहा है, लेकिन जो बड़े संस्थान है जिसमें क्वांटम बहुत ज्यादा है, अब मैं आपको क्वांटम की बताऊं कि हमारी जो है एक साल में लगभग 5.5-6 लाख ट्रांजेक्शन होती है। तो आप सोचिए 6 लाख ट्रांजेक्शन को, अकेले मेरी एडमिशन में 5 लाख ट्रांजेक्शन होती है, तो 5 लाख ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। जब हम एडमिशन करते हैं और एडमिशन का जब रिफंड प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वो हमारी महीनों की एक्सरसाइज चलती है, हमें दिन रात लगा रहना पड़ता है, क्योंकि जब आप पेमेंट को रिकंसाइल करते हैं तो एक एक स्टेप पे आपको हर चीज देखनी है। मल्टीपल बच्चा मूवमेंट कर रहा है, वो ए से बी, बी से सी, सी से डी, उसका वो पैसे का नरेशन, पैसा कट कट के हर जगह जा रहा है। तो मुझे वो, अगर बच्चा 10 जगह स्विच किया है तो मुझे 10 जगह का पेमेंट रिकंसाइल करना है। तो ऑटोमेशन से क्या है, वो एक सिंगल विंडो पे आ जाती हैं सारी चीजें, और जिसमें भी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो वो मेरा रेड करके मेरे को सिस्टम दिखा देता है कि कहां पे एरर है। तो मैं शॉर्टिंग जब करता हूं तो एरर पे ही मैं फोकस करता हूं। तो वो 5 लाख ट्रांजेक्शन में जो एरर आ रहा है वो मेरा कम से कम 15-20 हजार में आ रहा है, तो मैं 15-20 हजार पे कंसंट्रेट करता हूं। वो बाकी मेरी ट्रांजेक्शन पास ऑन हो चुकी है, जो सिस्टम ने बोल दिया ओके है, तो मैं 10-15-20 हजार ट्रांजेक्शन पे आ जाता हूं, जिसको मुझे फिर रिकंसाइल करना है, और उसमें मल्टीपल देखना है कि किसी ने डबल पेमेंट तो नहीं हो गया, या किसी का कैंसिलेशन तो नहीं हो गया, या कोई और टेक्निकल ग्लिच के कारण उसमें कोई दिक्कत आई है, जो हम रिफंड प्रोसेस में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा ऑटोमेशन का है, वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम जो हमने बोला था, आप इसको वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम बोल लीजिए, बिल ट्रैकिंग सिस्टम बोल लीजिए। तो एक ये ऑटोमेशन जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, और अभी 2-3 दिन से मैंने देखा 2-3 बार एफओ साहब ने एक सेशन लिया था, उसमें जो बताया जा रहा था वो यही चीज है कि आप ऑटोमेटेड किस चीज को कैसे करेंगे। सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ हम एक जो ऑफलाइन मोड में जो काम करते थे, उस ऑफलाइन मोड को ऑनलाइन मोड में लाना, एक ऑटोमेटेड मोड में लाना, कम से कम स्टेप्स को लेके करना, वो ऑटोमेशन है।
और जितने हम स्टेप को रिड्यूस कर सकें, प्रोसेस को फास्ट कर सकें। देखिए किसी भी संस्थान में, स्पेशली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, हम लोग फाइनेंस हो, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो, और भी कोई फैकल्टी हो, हम सारे के सारे बच्चों के लिए हैं। अब बच्चों से रिलेटेड यहाँ पे एक तो ये आपको मैंने बताया वेंडर का, बच्चों से रिलेटेड हमारा एक फी मैनेजमेंट सिस्टम है। अब फी मैनेजमेंट सिस्टम में भी हमने बहुत धीरे धीरे उसमें स्मूथ करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी हमने रिसेंटली किया है डिग्री लेने के लिए, एडवांस डिग्री के लिए प्रोविजन में क्रिएट किया, पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑटोमेटेड प्रोसेस है। हर चीज बच्चे को कहीं आना नहीं है, हिंदुस्तान वर्ल्ड के किसी भी कोने से एक फॉर्म फिल करेगा, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो उसमें अपलोड करेगा और फीस पेमेंट कर देगा, और फीस पेमेंट करने के 48 घंटे के अंदर वो उसे डिग्री उसके उस ईमेल पे मिल जाएगी। डिजी लॉकर पे भी चली जाती है और उसके ईमेल पे भी चली जाती है। तो ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है। इस तरह की बहुत सारी स्टूडेंट एक्टिविटीज को हम ऑटोमेटेड मोड पे करके जो बच्चों के लिए हम कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे मॉड्यूल पे जा रहा हूं जो हमारा था मेडिकल रिम्बर्समेंट के लिए। अब ये स्टेक पे है एम्प्लॉइज। ये तो अभी हमने वेंडर से रिलेटेड बताया था। अब हम जो एम्प्लॉइज का रिम्बर्समेंट है उससे रिलेटेड मैं आपको सर पर एडमिट कर लीजिए, कोई एडमिट। जी थैंक्स। क्या हो गया? देखिए अब हम आपको बताने वाले हैं मेडिकल रिम्बर्समेंट सिस्टम। ये भी तकरीबन हम 2-3 साल से हम दिल्ली विश्वविद्यालय में रन कर रहे हैं। जब हमने इनिशिएट किया था बहुत से, देखिए ऑटोमेशन में जब हम जाते हैं ना, एक सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन में भांति भांति के तरह हमारे स्टाफ हैं, एम्प्लॉयज होते हैं। उसमें हमारे ग्रुप सी ग्रुप डी के एम्प्लॉयज भी होते हैं। तो उनमें क्या होता है, वो कंप्यूटर से भी इतना नहीं है। तो जब हमने ये स्टार्ट किया था मेडिकल रिम्बर्समेंट, तो हमें बहुत परेशानी आई। इसमें क्या होता था, इसमें हमने एक मेडिकल कार्ड है वो स्कैन करके डलवाया था। वो हाँ शेयरिंग बस। अब देखिए किसी भी संस्थान में मेडिकल रिम्बर्समेंट के ये 4 तरीके हैं जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए हुए क्लेम्स के। पहला क्लेम होता है डायरेक्ट पेमेंट का। बहुत सारे संस्थान जो है कैशलेस एग्रीमेंट करते हैं हॉस्पिटल से। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली के कई हॉस्पिटल से कैशलेस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। हमारा एम्प्लॉय जाएगा, मेडिकल कार्ड देगा, अपना इलाज कराएगा, कंसर्न हॉस्पिटल डायरेक्टली इनवॉइस बिल रेज करता है और हमारे फाइनेंस को बिल भेज देता है। हमारा इंटरनल एक मैकेनिज्म है जो हम उससे वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन करने के बाद कंसर्न हॉस्पिटल को हम पेमेंट कर देते हैं। एक तो हमारा जो क्लेम का प्रोसेस है वो ये है। दूसरा है आईपीडी, जो हमारे कैशलेस नहीं है, डायरेक्ट पेमेंट में हॉस्पिटल्स नहीं है। उस केस के लिए क्या होता है, एम्प्लॉय एडमिट हुआ, उसने अपना इलाज कराया, बिल लाया, और वो आईपीडी में हमारे जो पोर्टल है मेडिकल रिम्बर्समेंट का, उसमें आईपीडी में वो क्लेम कर देगा। तीसरा हमारा है ओपीडी, आउट पेशेंट। ओपीडी में जो हम छोटी छोटी सर्दी जुकाम बुखार हो गया किसी को, या किसी की रेगुलर मेडिसिन है, वो डॉक्टर को उसने दिखाया और उन्होंने 2 महीने 3 महीने की प्रिस्क्राइब कर दी, उस तरह के मेडिसिन के जो बिल है वो हमारे ओपीडी में कवर्ड होते हैं। चौथा जो है, ये हो सकता है कि कुछ संस्थानों में ना हो, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में ये है, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें ये ऑप्शन है हेल्थ सेंटर्स का। दिल्ली विश्वविद्यालय में WS हेल्थ सेंटर है। तो इस तरह कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिसमें हेल्थ सेंटर्स नाम की चीज होती है। तो जो हेल्थ सेंटर के थ्रू बिल्स जनरेट होंगे उसे हम बोलते हैं लोकल परचेज LP। एम्प्लॉय ने हमारे हेल्थ सेंटर में दिखाया डॉक्टर्स को, हमारे
डॉक्टर्स जो हैं वहाँ पे हमारा एक मिनी हॉस्पिटल हम कहते हैं, हेल्थ सेंटर हमारा एक मिनी हॉस्पिटल है जहाँ छोटी मोटी चीज़ों के लिए हम जाके अपना इलाज करा सकते हैं। वहाँ पे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और वो मेडिसिन अगर हमारे हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर में अवेलेबल नहीं है तो वो ओपन मार्केट से परचेज कर सकता है और वो बिल हेल्थ सेंटर में सबमिट करेगा। जो ये चौथा क्लेम है वो एलपी का है, उसे बोलते हैं हम लोकल परचेज। तो वो लोकल परचेज कहीं से भी परचेज करेगा, हेल्थ सेंटर वेरीफाई करेगा, कंसर्न ब्रांच को भेज देगा और वो अमाउंट एम्प्लॉय के अकाउंट में रिमिट हो जाएगा। तो ये 4 तरीके के क्लेम्स जो है वो हम इस मेडिकल रिम्बर्समेंट सिस्टम के थ्रू रन करते हैं। अब ये रन करने का इसमें एक ये जो हमने पोर्टल बनाया है रिम्बर्समेंट का, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है और सिस्टम को ऑटोमेटेड। देखिए क्या होता है कि जब हमारा एम्प्लॉय है, पहले जब हार्ड वाला जो सिस्टम होता है उसमें इंफॉर्मेशन, देखिए आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंफॉर्मेशन सही समय पे सही जगह सही आदमी को मिल जाए, तो वो ऑटोमेशन का फायदा तब है। तो ऑफलाइन वाले पोर्शन में ये चीजें जो लैकिंग होती थी, ये ऑटोमेशन से ये चीज हो गई है सही कि आपने जब अपना फॉर्म मेडिकल रिम्बर्समेंट का क्लेम भरा और जब आपको पेमेंट हो रहा है तो हर स्टेज आप अपने डैशबोर्ड पे जाके लाइव देख सकते हैं कि मेरा स्टेटस बिल का क्या है, मेरा कितने का मैंने बिल सबमिट किया और मेरे को कितना फाइनेंस ब्रांच ने डिडक्शन करने के बाद, अगर इन केस कोई डिडक्शन है तो उन्होंने कितना पास किया है। अभी रिसेंटली हमने एक इसमें विंडो ओपन और करी है, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर की सिस्टम की एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो वो नरेशन में हमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, वो अभी इस पे अपडेशन में है, लगे हुए हैं और वो नरेशन हम करना चाह रहे हैं। जो हम मेडिकल में लोगों के मेडिसिन के पैसे काटते हैं या जो एडमिसेबल काटते अपने मर्जी से नहीं है, कुछ मेडिसिन एडमिसेबल नहीं होती है, जैसे विटामिन है, कैल्शियम है, ये चीजें एडमिसेबल नहीं है। अब हमारे एम्प्लॉय ने क्लेम किया है तो हम क्या है, वो जो विटामिन है उनका अमाउंट डिडक्ट कर देते हैं। अब डिडक्ट करने के बाद जो क्लेम सबमिट किया एम्प्लॉय ने वो और जिसको मिला है, दोनों में डिफरेंस है। अब एम्प्लॉय थोड़ा कंफ्यूज होता है, मेरा ये अमाउंट क्यों काटा गया, तो उसको बताने के लिए हमने एक इसमें नरेशन का जो अब धीरे धीरे हम अपडेशन कर रहे हैं उसमें हमने इसमें डाला है, जो अमाउंट काटा जाएगा वो किस मेडिसिन का काटा है और कितना अमाउंट काटा है, वो नरेशन में आएगा आपका कि किस सॉल्ट का हमने क्या अमाउंट आपका काटा है। जो आपने बिल दिया था उसमें ये सॉल्ट जो आपने क्लेम किया है ये एडमिसेबल नहीं है, इसका अमाउंट इतना था, इतना माइनस करने के बाद आपका इतना प्रोसेस हुआ है, फाइनल सैंक्शन अमाउंट ये है। जो अभी तक सिस्टम में नहीं था, ये 1 अप्रैल 2022 से हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और दोबारा से फिर से हमने वो एसएमएस, जो अभी हमें कुछ समय से हमारा एसएमएस बंद हो गया था, वो एसएमएस को हमने दोबारा से स्टार्ट किया है कि जैसे बिल आपका प्रोसेस होगा तो आपके मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा, आपका मेडिकल क्लेम नंबर सो एंड सो पास रुपीज इतना। मेल आ रहा है, आज की डेट में मेल अभी आ रहा है। एसएमएस एक्चुअली हमारा थोड़ा रिन्यूअल में टाइम लग गया, तो अब एसएमएस भी हम दोबारा से फिर से 1 अप्रैल 2022 से हमारा मेल और एसएमएस हम दोनों फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सिस्टम जो है मेडिकल रिम्बर्समेंट का, हमने मेरे ख्याल में अगर यहाँ पे सुनील जी हों सत्यवती कॉलेज, तो ये मैंने मेडिकल रिम्बर्समेंट का सत्यवती कॉलेज में आई थिंक 2 साल पहले स्टार्ट करा दिया उनको भी, और भी 2-3 कॉलेजेस है जिसमें मैं ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट करा चुका हूँ विश्वविद्यालय के साथ साथ। तो हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं या जो भी बाकी इंस्टीट्यूशन हैं, अगर वो हमसे लेना चाहें तो हम उनमें उनको हेल्प करने को तैयार हैं। बहुत यूजर फ्रेंडली है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ऑपरेट करना बहुत आसान है। सर बहुत सक्सेसफुली चल रहा है सर हमारे यहाँ। बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है सर, फर्स्ट क्लास सर। वेरी गुड। तो इसीलिए मैंने बोला ना सुनील जी को, क्योंकि हमने सुनील जी के यहाँ स्टार्ट किया है, 2-3 कॉलेजेस में हमने और किया है। अभी इसमें हम मॉडिफिकेशन भी और ला रहे हैं। मॉडिफिकेशन, टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन क्या है कि अभी बहुत सारी इसेंशियल मेडिसिन और कुछ मेडिसिन जो है वो एडमिसेबल नहीं है, उनको हम इसमें इनकॉर्पोरेट बैक एंड से करना चाह रहे हैं, जिससे जब भी वो क्लेम करेगा तो ऑटोमेटिकली वो अमाउंट जो है वो लेस हो जाए और कंसर्न एम्प्लॉय को उसके बारे में पता हो। जब वो फिल कर रहा है तो उसे पता हो कि ये एडमिसेबल अमाउंट नहीं है, तो वो जो फिल करेगा उसी समय उसको ये पता चल जाएगा। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें हम इसमें इनहेंस कर रहे हैं धीरे धीरे। देखिए ये जितने भी ऑटोमेशन आप करेंगे तो ग्रेजुअली जैसे जैसे आप यूज करेंगे सिस्टम में इंप्रूवमेंट होगा, लोगों के सजेशंस आएंगे, सजेशंस के बाद हम इसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करेंगे और एक दिन हम इसको और अच्छा कर सकते हैं।
एडमिट कर लीजिए। इसमें ये तो कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है कि हम सोचते हैं उससे पहले पेमेंट आएगा। मैं रिसेंट अपना मेडिकल पे बता रहा हूँ, मैंने दिया और फिर मुझे मैसेज आ गया आपका बिल चला गया। तो वो मैंने बहुत लेकिन एक टाइम था कि मैं कंसिडरेबल टाइम अगर महीना 1.5 2 महीना वेट करना पड़ता था, मैंने गेट द फॉर पेमेंट। अब विद इन 10 डेज जो है ऑलमोस्ट आ जाता है पेमेंट। नहीं, और मेडिकल में जो सबसे बड़ा चीज जो है ना, जो मेडिकल में भी आ रहा है कि भाई कितना अमाउंट आपका पास हुआ है, वो बड़ा हेल्पफुल है। तो पहले पता नहीं चलता था कि भाई मतलब टोटल अगर हम करें कि मैं पैसा मिल ये क्या कुछ ओपन करना चाह हाँ रहे जी हैं? मैडम, वेबसाइट है अपनी, ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एज से कर दें महेंद्र जी? हाँ, एज से कर देते हैं, एज पे कर दूंगा। देखिए ये हमारा जो है वो डैशबोर्ड है मेडिकल रिम्बर्समेंट साइट का। दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी भी तरीके का मेडिकल रिम्बर्समेंट इस पोर्टल के थ्रू हम करते हैं। इसमें एम्प्लॉइज अपने आप को रजिस्टर करता है। रजिस्टर करने के बाद वैलिडेशन जो है अल्टीमेटली, देखिए वैलिडेशन हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, वो इसमें कोई भी डेटा फीड कर सकता है। लेकिन जब हम रिकॉर्ड से उसका एचआर सेक्शन हमारा वेरीफाई करता है और फाइनेंस उसको ओके करता है, तभी उसका वैलिडेशन होता है। उसके कितने फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स की डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो भी इसमें वो क्रेडेंशियल्स फिल करेगा अपनी पे से रिलेटेड, अपनी फैमिली मेंबर से रिलेटेड, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में होगा वो फर्दर वेरिफिकेशन के बाद ही वैलिडेट होता है। जब वैलिडेट हो जाएगा उसके बाद इसको वो एक्सेस कर सकता है। जब तक वैलिडेट नहीं हुआ वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता, उसका कोई भी बिल एडमिट नहीं होगा। देखिए इसमें डॉक्यूमेंट सिर्फ एक आपका मेडिकल कार्ड, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। मेडिकल प्लास्टिक मेडिकल कार्ड जो यूनिवर्सिटी आपको इशू करती है या कोई भी और संस्थान, जैसे हमारे कॉलेजेस हैं, कॉलेज अपना मेडिकल कार्ड अगर इशू करते हैं, मेडिकल कार्ड या आई कार्ड इशू करते हैं। नॉर्मली डिपार्टमेंट्स और कॉलेजेस ने क्या किया हुआ है, एक ही कार्ड जो है इशू करते हैं, उसी के बैक साइड में उनका फैमिली डिटेल्स भी डाल देते हैं, तो वो मल्टीपल यूज हो जाता है। आई कार्ड का भी काम करता है, मेडिकल कार्ड का भी काम करता है। हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है वो दोनों सेपरेट किए हुए हैं। मेडिकल कार्ड अलग है, हमने मेडिकल कार्ड में ग्रुप ए बी सी डी जो भी है, अब तो सी नहीं, डी नहीं है, सी तक है, हमने उनका कलर कोडिंग किया हुआ है। हर कार्ड का कलर अलग है, ग्रुप ए का कार्ड का अलग है, ग्रुप बी अलग है, ग्रुप सी का अलग है, क्योंकि सभी का इंटाइटलमेंट अलग है। तो हम जब हॉस्पिटल से एग्रीमेंट करते हैं तो हमने उनको बताया हुआ है ग्रीन कार्ड का इंटाइटलमेंट, पर्पल कार्ड का इंटाइटलमेंट और आपका येलो कार्ड का इंटाइटलमेंट क्या है। बाकी हमारे कार्ड पे ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। नॉर्मली जब प्रोसीजर के लिए जाता है तो प्रोसीजर उसके इंटाइटलमेंट से ये है कि वो प्राइवेट रूम का इंटाइटलमेंट है, सिंगल रूम का है, डबल का है, जनरल वार्ड का इंटाइटलमेंट है, तो वो सब आपके वो जो पे है, पे से रिलेटेड करता है। तो ग्रुप ए में नॉर्मली वो प्राइवेट के इंटाइटलमेंट होता है, जो आपके एआर और एओ जो हैं वो उस लेवल से ऊपर के जो भी अधिकारी होंगे वो प्राइवेट रूम के इंटाइटलमेंट होंगे।
देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, विजुअल है? जी सर। ठीक है, ठीक है। देखिए अब ये एडमिन का मैंने डैशबोर्ड ओपन किया है जो मेरा अपना है, डिप्टी रजिस्ट्रार फाइनेंस का एडमिन का जो राइट्स है मेरे पास है। अब इसमें क्या है कि जो भी क्लेमेनेंट है हमारे, जिन्होंने भी क्लेम किया है, उनका पूरा डेटा जो है मेरे डैशबोर्ड पे आएगा। क्या बिल सबमिट किया है, क्या उसका बिल का पेमेंट हुआ है, बिल कब सबमिट किया है, बिल का स्टेटस क्या है, अंडर प्रोसेस है या पेमेंट हो चुका है, ये सारा का सारा हमारा जो है वो मेरा डिटेल यहाँ पे आएगा। ये देखिए, ये हमारे आज के समय पे, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ इस समय, जो करंटली आज या आज और कल में जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उन्होंने जो अपना बिल सबमिट किया है वो आपको स्टेटस आ रहा होगा। आप देखिए क्लेम स्टेटस में अंडर प्रोसेस आ रहा है। इट मीन्स कि ये अभी इन्होंने फॉर्म को फिल किया हुआ है। देखिए ये हमारे क्लेमेंट हैं जिन्होंने ये अपना बिल सबमिट किया है, तो अभी ये अंडर प्रोसेस है। ये हमारा एक फॉर्मेट है जो हमने दिया हुआ है। इस फॉर्मेट को वन टाइम फिल करना होता है। किसी भी एम्प्लॉय को अपना क्रेडेंशियल वन टाइम फिल करना है। उसके अपने डिपेंडेंट है, एक बार में वो ऐड करेगा और वैलिडेट हो जाएंगे। उसके बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं, फर्दर मॉडिफिकेशन जो भी कराना है वो एडमिन के पास आना पड़ता है। आपका कोई एडिशन है या डिलीशन है, सपोज किसी का डिपेंडेंट जो है वो क्लेम लेने से बाहर हो गया है, सपोज बच्चा है, उनका 2 बच्चे हैं, बेटा है, तो बेटे को 25 साल के बाद या जब अर्निंग स्टार्ट कर दे, वो एडमिसेबल नहीं है उसका, तो यहाँ पे उसको अपने बच्चे का नाम डिलीट कराना है। तो डिलीट कराने के लिए उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एडमिन के पास राइट्स हैं, वो एडमिन जो है उसके डिपेंडेंट को डिलीट करेगा। सपोज किसी की डॉटर है, डॉटर की मैरिज हो गई, मैरिज होते ही वो इंटाइटलमेंट नहीं है, तो उसे अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना है और यहाँ से अपने डिपेंडेंट का नाम डिलीट कराना है। दोनों मोड है। आपको ईमेल, डेडिकेटेड ईमेल है, आप ईमेल में अटैचमेंट के साथ आपको मेल करना है। बिल्कुल सॉफ्टवेयर के थ्रू भी अप्लाई कर सकता है। इसमें हमने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है हेल्पलाइन का जो डेडिकेटेड है फॉर मेडिकल रिम्बर्समेंट। नहीं डायरेक्टली, देखिए नहीं वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखिए जितने आप विंडो ओपन करेंगे फिर उसके कॉरस्पॉन्डेंस चीजें उतनी हेड्स बढ़ते जाते हैं। तो एक फॉर्मेट है, अगर फॉर्मेट में कोई भी फर्दर चेंज करोगे तो उसके लिए आपको मल्टीपल प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी बैक एंड से, जो फिर सिस्टम को क्या कॉम्प्लेक्स बना देगा। अभी क्या एक सिंपल सा फॉर्म है, सिंपल सा फॉर्म। अब देखिए कोई भी चीज जब हम करते हैं तो हमें हर तरीके के हमारे एम्प्लॉय हैं, टीचिंग भी है, नॉन टीचिंग में, और नॉन टीचिंग में मेरे पास ग्रुप सी का एम्प्लॉय भी है, ग्रुप डी का एम्प्लॉय भी है। तो मुझे वो चीजें सबको ध्यान में रख के सिस्टम बनाना है कि वो यूजर फ्रेंडली इतना हो कि वो मेरा जो माली भी काम कर रहा है वो भी इसको भर पाए और एक ऑफिसर है वो भी इसको भर पाए। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए हम इतना वो रिजिड हो गए, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम ना बना दें कि वो बेचारा नीचे वाला फॉर्म भरना उसके लिए एक इतनी कड़ी मेहनत हो जाए कि वो क्लेम करने से पहले 10 बार सोचे कि मैं इसको भरूंगा कैसे, या मुझे दूसरे के सपोर्ट के लिए जाना ही पड़ेगा। तो यूजर फ्रेंडली इसलिए आपको इतना बनाना है कि वो दूसरे के सपोर्ट पे ना रहे, वो खुद ही कर पाए उसको। तो वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को हमने मना किया है। देखिए उसके पास मोड है, वो फिजिकली भी दे सकता है और ईमेल, अगर उसके पास ईमेल है, इसमें हमने ईमेल और मोबाइल दोनों रजिस्टर करने की ऑप्शन दी हुई है, जिससे उसको कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू भी मिले और मोबाइल के थ्रू भी मिले। जो उसका स्टेटस है, देखिए सूचना समय पे मिल जाए उसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। और पर्सनल क्लेम्स में एम्प्लॉयज की
फाइनेंस विभाग जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे हमेशा रहती है पर्सनल क्लेम की, कि मैंने ये बिल जमा कर दिया है, 2 महीने हो गए, 1 महीने हो गया, मेरा कोई स्टेटस ही पता नहीं चल रहा है, मैं इस ब्रांच फोन कर रहा हूँ, उस सीट पे जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। तो ये जाने की जरूरत नहीं है, सारा आपका डैशबोर्ड पे है। आप अपना लॉगिन करें और अपना स्टेटस देखें, जब पेमेंट हो जाएगा तो आपका सिस्टम आपको ऑलरेडी बताएगा। देखिए ये हमारे यूजर्स हैं, इस समय मेरे पास तकरीबन 24,2467 यूजर्स हैं जो मेरे एम्प्लॉय रजिस्टर्ड हैं इस पे, जो इस मेडिकल रिम्बर्समेंट का फायदा उठा रहे हैं। 2467 आज की डेट में ये मेरा काउंट है, जो अभी तक इसमें किसी ना किसी मोड से उन्होंने बिल का क्लेम डाला हुआ है सिस्टम पे। अब ये देखिए पूरा उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये पूरा एक डैशबोर्ड पे आ रहा है। पेंशनर है, रेगुलर एम्प्लॉय है, एडहॉक है, इस तरह की सारी चीजें जो हैं वो उस पे नरेशंस में आती है कि उसका एम्प्लॉयमेंट का नेचर क्या है। तो ये एक सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम एक, जैसे अभी मैंने आपको बिल ट्रैकिंग सिस्टम बताया था, ये एक उसी तरीके का सिस्टम है कि आपने एक पर्सनल क्लेम किया है, अभी तो ये हमने एक ऑटोमेशन किया है मेडिकल रिम्बर्समेंट में। आगे एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है सामर्थ ई गवर्नमेंट, आप लोगों ने सुना होगा। सामर्थ के सूट के अंदर हमने सारे के सारे टॉपिक्स को कवर किया है जो एक संस्थान में जरूरत होती है, पर्सनल क्लेम से लेके आरटीआई से लेके एकेडमिक लीव मैनेजमेंट। वो कभी आपको अगर मौका मिलेगा तो मैं उसके बारे में भी आगे कभी बताऊंगा कि सामर्थ में अभी आप देखेंगे थोड़े दिनों बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लीव मैनेजमेंट सिस्टम भी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि अभी अखिलेश यहाँ बैठा हुआ है तो हम टीचिंग का डेटा अपडेट कर रहे हैं, इसी तरह नॉन टीचिंग का डेटा भी हमारा अपडेट हो रहा है। तो कोशिश, हाँ, तो लीगल का, जैसे लीगल केसेस का भी है, तो वो हमारा एक पूरा सूट है सामर्थ। सामर्थ में हर चीज का एक ऑटोमेटेड कॉन्सेप्ट पूरा है, आपका कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कवर ना हो। तो जो लोग सामर्थ का फैसिलिटी अगर लेना चाहें वो अवेलेबल है, वो अपने संस्थान से दिल्ली विश्वविद्यालय को अपना चिट्ठी अगर लिखवाएंगे तो हम उनको ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे। इसमें रेडिली सारी चीजें अवेलेबल है, हम संस्थान के लिए कस्टमाइज भी कर देते हैं, जिस संस्थान की कोई रिक्वायरमेंट है उस तरह कर देते हैं। तो ये एक हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्रोजेक्ट दिया हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय। हमारी टेक्निकल टीम DUCC प्रोफेसर संजीव सिंह जी हैं, वो उसको लीड कर रहे हैं, वो इसके मेंटर हैं। तो ये एक हमारा सामर्थ्य है। ये सारे के सारे जो मॉड्यूल हैं, एक आपको मैंने ये फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का मॉड्यूल है बहुत छोटा सा, इसमें हमने 4-5 चीजें इनकॉर्पोरेट की है। तो इस तरह हमारे हर फील्ड पे लीगल से रिलेटेड अलग मॉड्यूल है, एकेडमिक से अलग है, एडमिशन का अलग है। तो इस तरह के हमारे बहुत सारे मॉड्यूल्स है। RTI मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा, तो ये हमने बहुत सारे मॉड्यूल्स इसमें क्रिएट किए हुए हैं। और मेरे पास पैसा कट के उसमें 1200 रुपये आ गए, 800 रुपये का क्लेम मिला कि वो ठीक मिला है नहीं मिला, उसके लिए हमें मेमोरी जो है वो अभी हमने इसमें अपडेट, वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, वो अपडेशन हम कर रहे हैं, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर की, हर प्रोग्राम की एक लिमिट होती है। तो बहुत सारी लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन को हम रिमूव करके जितना कर सकते हैं वो हमने इसमें ऑप्शन किया हुआ है। और आने वाले समय में वो नरेशन में हम ये चीज डालेंगे कि वो आपका डिडक्शन पार्ट जो है वो किस चीज का है, किस मेडिसिन का है, या आपने जो क्लेम किया था और जो फाइनल पेमेंट आया वो डिफरेंस अमाउंट है क्यों। चलिए भाई, आज मैं आपको ये 2 ही कॉन्सेप्ट आज इसमें क्लियर कर रहा हूँ। आगे मौका मिलेगा तो मैं आपको फीस मैनेजमेंट, पेरोल और बजट पे आपको आगे फर्दर बताऊंगा। अगर किसी को कुछ क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो मोस्ट वेलकम। Thank you so much, sir. Do we have any questions? सर नमस्कार सर। कौन बोल रहे हैं? मैं रमेश कोंगारी बात कर रहा था मैम। जी रमेश जी बोलिए। सर ये जो समर्थ का आप जो है टेक्निकल सपोर्ट जो है कॉलेजेस को देंगे, तो उसके लिए क्या कॉलेज को एप्लीकेशन देना पड़ेगा या हम लोग आपको DUCC को कंसल्ट? बिल्कुल, आप रिक्वेस्ट कीजिए। ओके। अपने प्रिंसिपल को बोलिए, एक रिक्वेस्ट लेटर लिखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को। और सर ये जो मेडिकल रिएम्बर्समेंट आप जो आपने बनाया है ये बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो इसको कमला नेहरू कॉलेज यूटिलाइज करना चाहते तो सर उसको भी कर सकते हैं आप, मोस्ट वेलकम। इसके लिए भी आप लिखिए, हम पूरा टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे।
ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। निशा जी आपका क्वेश्चन। विदाउट पॉलिसी सर हम 4 साल बाद हमारे गवर्नमेंट ने विदाउट पॉलिसी हमारे एग्जामिनेशन में हम लोग देखिए, हर तरीके के रिकॉर्ड के लिए विदाउट पॉलिसी अलग अलग है। जैसे बिल्स के लिए अलग है, कुछ नेचर ऑफ रिकॉर्ड्स ऐसा है जो आपका परमानेंट नेचर का है, तो उसे हम विदाउट नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो कंसर्न ब्रांचेस हैं ये रिकॉर्ड्स उनके पास अवेलेबल है। जैसे एग्जाम का सिस्टम अलग है, फाइनेंस में सिस्टम है। जैसे बिल्स के लिए एक जीएफआर का प्रोविजन है, मिनिस्ट्री ने दिया हुआ है 3 से 5 साल में आप विदाउट करेंगे। बिल्स जो है वो 3 साल बाद आप विदाउट करेंगे। किसमें? देखिए, हाँ, इस पे वो तो देखिए, वो तो आपने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है। वो तो आप जैसे डिजिटाइज कर रहे हैं। हम बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐसा है कि हम फिजिकल मोड को हटा रहे हैं, डिजिटाइज कर दिया है, क्योंकि मेरे पास रखने की जगह नहीं है। तो अब मेरे को रखने की जगह नहीं है, तो मैं क्या करूंगा उसको इतनी जगह में। हर साल मेरे पास, अब मैं 5 लाख बिल पास कर रहा हूँ, 5 लाख बिल अगर आएंगे तो मैं कहाँ रखूंगा? तो मेरी कोशिश है कि उस बिल को मैं डिजिटल करूं और उसको विदाउट करूं। जगह की जगह बनी रहेगी, रिकॉर्ड मेरे पास है। कल को ऑडिटर्स पूछे या किसी को पूछना है तो भाई डिजिटल मोड में मेरे पास अवेलेबल है। आपको जो सीन करना है प्लीज देखिए। जैसे आज की डेट में सर्विस बुक है, डिजिटाइज हम कर रहे हैं। जैसे जैसे डिजिटाइज होंगी तो वो फिजिकल वाली जो चीजें हैं वो धीरे धीरे डिसकंटिन्यू होंगी और हम एक डिजिटल मोड पे कन्वर्ट होंगे। समय लगेगा। देखिए, अगर हम पिछले 4, 5, 6 सालों की बात करें तो हम डिजिटल पे बहुत ज्यादा कन्वर्ट हुए हैं। एक समय ऐसा था कि डिजिटल के नाम सुनते ही हम घबराहट होती थी कि मेरा कोई पैसा तो नहीं निकाल लेगा, मेरा कुछ हो तो नहीं जाएगा ये। लेकिन अब धीरे धीरे करते करते हम एक चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन फ्यूचर में भी ये सब चीजें जो है, ये हार्ड से हम सॉफ्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो एक डिजिटल मोड पे हम आएंगे। आने वाले समय में हर चीज डिजिटल। आप एक अपने मोबाइल पे चलता फिरता अपना पूरा कैंडिडेचर लेके चलेंगे, आपके सारी चीजें इस पे हैं। आज के समय में आप देखिए ना, ड्राइविंग लाइसेंस आपके इस पे है, गाड़ी की आरसी इस पे है, पॉल्यूशन इस पे है, आपके डिग्री डॉक्यूमेंट सारे डिजी लॉकर पे आप रखें। आपको कोई वेरिफिकेशन करा, डिजी लॉकर आपका एक्सेप्टेबल है। कहीं पे भी आप जाएंगे वो आपको मान्य है। फिजिकल मोड में नहीं दिखाना। आप ये देखिए, किसी को वेरीफाई करना है वो डिजिटल मोड पे जाएगा, डिजी लॉकर पे पासवर्ड डालेगा, आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई कर लेगा, वो वैलिडेशन करके देते हैं। तो ये धीरे धीरे हम डिजिटल मोड की तरफ बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम हिंदुस्तान जो है ना, भारत बहुत ज्यादा तरक्की करेगा डिजिटल कॉन्सेप्ट में। सुमीत जी का क्वेश्चन। सुमीत अरोड़ा जी, आप सवाल पूछिए। शर्मा जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये डायरेक्ट पेमेंट फैसिलिटी देते हैं हॉस्पिटल वाले, वो हम मेडिकल कार्ड देने के बावजूद भी कहते हैं परमिशन लेटर लेके आओ कॉलेज से जी। तो ऐसा क्यों है? मतलब वहां पे देखिए सर, ऐसा है सुमित जी, इसमें ऐसा इसलिए है, अब हॉस्पिटल्स का कहना ये कि मेरा जो एग्रीमेंट साइन किया है वो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है। अब आपके केस में क्या है कि वो यूसीएमएस, आप बीइंग यूसीएमएस का कार्ड देते हैं ना, तो अब उनके पास एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का बेनिफिशियरी गया हुआ है, एक यूसीएमएस का गया है, एक एक्स कॉलेज का गया है। तो उनका कहना ये होता है कि जी मेरा एग्रीमेंट साइन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से है, तो मुझे तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिख के दे या वो मेडिकल कार्ड दो। आपका मेडिकल कार्ड सप्लाई किया है उससे मैच नहीं करता है। तो उस केस में क्या करते हैं, वो एक आपसे एक सर्टिफिकेट इशू कराते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पेमेंट अथॉरिटी आप है उस केस में। तो एक आपसे एक सर्टिफिकेट मांगते हैं ऑथेंटिकेट करने के लिए कि ये जेन्युइन क्लेमेंट है। बस हम कोशिश कर रहे हैं कि हॉस्पिटल इस तरह की चीजें ना करें, लेकिन अब देखिए हॉस्पिटल अपनी ऑटोनॉमी है उसकी, हम क्योंकि सर्विस उनसे ले रहे हैं तो हमें उनकी बात माननी पड़ेगी, अदरवाइज वो हमें सर्विस देने से मना कर देंगे। तो हम तो लेने वाले पार्ट पे हैं, तो जो वो कहेंगे हमें वो करना पड़ेगा। ठीक है सुमित जी? ठीक है सर, राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। लक्ष्मी जी, आप सवाल पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि की बात कोई टीचर या कोई भी नॉन टीचिंग एम्प्लॉई अपने डॉक्टर को इंक्लूड कर सकते हैं मेडिकल रिइंबर्समेंट के लिए आफ्टर रिटायरमेंट, अगर वो कहें कि मेरे डॉक्टर अनमैरिड है एंड पहले उन्होंने सर्विस से कभी नहीं उनका नाम इंक्लूड किया है। देखिए एंटायर सर्विस में आपने ऐड किया था कि नहीं किया था? नहीं सर, एंटायर सर्विस में नहीं किया, रिटायरमेंट के बाद अब वो उनका नाम इंक्लूड करवा रहे हैं। सर्विस ड्यूरेशन में नहीं किया था? नहीं सर।
नहीं तो फिर डॉटर क्या है, मैरिड हैं अनमैरिड हैं? लक्ष्मी जी डॉटर अनमैरिड है मैरिड है? का नाम मुझे इंक्लूड करवाना चाहिए। मुझे लग रहा है लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी आवाज आ रही है आपको हमारी? हाँ जी मैम। देखिए लक्ष्मी जी, आपको एक मैं क्लियर कट बता दूं, आफ्टर रिटायरमेंट किसी भी डिपेंडेंट का नाम रिकॉर्ड में ऐड नहीं हो सकता, चाहे वो डॉटर हो, नहीं हो चाहे सकता, वो और भी कोई हो। ओके ठीक है, आफ्टर जो भी होगा फैमिली में, वो डेट ऑफ रिटायरमेंट से एक दिन पहले तक हो सकता है। अगर वो रिटायर हो गया उसके बाद फैमिली के एडिशन और डिलीशन नहीं हो सकता। ठीक है लक्ष्मी जी? हाँ जी सर, एक और क्वेश्चन है, अगर किसी ने अपने किसी पेरेंट का नाम लिखवा रखा है और उनके मतलब कोई सिंगल मदर का ही सिर्फ लिखवा रखा है और वो डेथ हो जाती है, तो क्या अपनी मदर इन लॉ का नाम लिखवा सकते हैं उसके बाद? लिखवा सकते हैं, सर्विस में होना चाहिए, जो मैंने अभी कंडीशन आपको बताई है। फीमेल एम्प्लॉय को ये लिबर्टी है कि वो अपने सास ससुर और अपने माँ बाप दोनों में से किसी को ले सकता है, दोनों को ले सकते हैं, मेल एम्प्लॉय के लिए नहीं है। सर ओके सर, उनमें से किसी एक की डेथ होगी जिनका वो पहले क्लेम कर रहे थे, तो उसके बाद वो मदर का ले सकते हैं अगर पहले? बिल्कुल, मैंने कहा ना फीमेल एम्प्लॉय ले सकता है, मेल एम्प्लॉय नहीं ले सकता। ठीक, ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। जगदीश जी आप पूछिए सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा भी क्वेश्चन जो लक्ष्मी बुद्धि राजा मैडम से उसी से रिलेटेड है जिसका आपने अभी बताया भी। एक्चुअल में केस ये है कि जो हमारे पेंशनर हैं उनकी बेटी डिवोर्स हो गया है और वो जो मतलब कोर्ट से वो लगा के उन्होंने साथ में दिया, तो क्या उस केस में मेडिकल डिपेंडेंसी होगी? नहीं होगी, मैंने बोला ना रिटायरमेंट से पहले अगर उनके फैमिली डिक्लेरेशन में है तो ही एडमिसिबल है। आफ्टर रिटायरमेंट किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है, ना एडिशन ना डिलीशन। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभिनव जी पूछिए। That's all then. This is the last question. अभिनव जी पूछिए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अभिनव जी, बताएं। सर जैसे अभी लक्ष्मी मैडम ने पूछा था कि मेडिकल डिपेंडेंसी फॉर इन लॉज और मे बी पेरेंट्स जी, तो कुछ लोग हैं जैसे जो देखने में बहुत वेल टू डू हैं, सैलरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, जो हमें अज्यूम करते हैं कि वो रिच बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उन्होंने उस क्लॉज में अपने पेरेंट्स को और इन लॉज को रखा हुआ है, किसी ने पेरेंट्स को किसी ने इन लॉज को, मतलब कि उनकी इनकम है ही नहीं या बहुत कम है, 2000 रुपए महीना टाइप 3000 रुपए महीना, तो हम वो क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं? देखिए वो उनको डॉक्यूमेंट जो आपको सप्लाई कर रहे हैं आपको उसी पे मानना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं से आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन मिला है तो आप उसको फर्दर वेरीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज जो एम्प्लॉय ने आपको अंडरटेकिंग दी है वही मान्य होगी। तो ऐसे तो बहुत सारे फ्रॉड हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन वही है कि अगर वो फ्रॉड कभी भी नॉलेज में आया तो कंसर्न एम्प्लॉय की नौकरी जा सकती है फोर्जरी में। तो उस एम्प्लॉय को देखिए, बीइंग ए एम्प्लॉय उसकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपने संस्थान के साथ जो है वो इस तरह की धोखाधड़ी ना करे, वो अपनी नौकरी से ना खेले। तो ये डिपेंड उसी एम्प्लॉय के ऊपर है कि वो उसको फर्दर कैसे कर रहा है। और हम फॉर्म 16 और ये और वो उनका कोई पैन 26 फॉर्म ये सब कुछ मंगवा सकते हैं, हमारे पास राइट है कुछ? अगर आपको देखिए बीइंग ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको ऐसा लगता है तो आप वो कॉल ले सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। पे लगने का लेकिन आधार नहीं है, लगने का तो हमारा अजम्पशन है सिर्फ। वही मैं देखिए ये एक इशू ऐसा है ना कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। आप इशू छेड़ेंगे तो वो फिर 4 लोग का कहेगा कि मेरे से क्यों मांग रहे हो, 4 लोग हैं और विश्वविद्यालय में नहीं हो रहा और संस्थान में नहीं हो रहा, आप मेरे पीछे पड़े हैं, आपकी इंटेंशन नहीं है। तो वो सारी चीजें आप ध्यान में रखें। आपको अगर ऐसा लगता है कि हाँ ये केस थोड़ा सा ठीक नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेके आप उसको आपके वो हो सकते हैं, गो ऐड कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है वो, क्योंकि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि आप प्रोसेस कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि क्लेम ठीक नहीं है या क्लेम को रिविजिट किया जा सकता है तो वो आपकी अथॉरिटी, आप कर सकते हैं।
ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग और भी पूछना चाह रहे हैं, लेकिन 6:10 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो एक क्वेश्चन शुभ्रेंदु जी जल्दी से पूछ लीजिए, क्या सवाल है आपका? जी मैम, एक क्वेश्चन था, एक हमारे रिटायर्ड, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, एक हमारे रिटायर्ड एसओ थे, उनकी डॉटर अब डिवोर्स हो गई हैं, तो डिवोर्स डॉटर को अपना डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं अपने मेडिकल के लिए। बिल्कुल नहीं बनेगी शुभेंदु जी, मैंने अभी पहले भी बोला था, आफ्टर रिटायरमेंट किसी भी तरीके एडिशन डिलीशन नहीं हो सकता। जी सर, जी सर, जी सर, सिंपल सा है, एम्प्लॉय जब तक सर्विस में है तब तक वो अपना डिपेंडेंट डिक्लेयर करेगा। जी, फिर तो वो पेंशनर हो गया ना, पेंशनर में वो और उसकी वाइफ, इसके अलावा कोई नहीं है। जी सर, जी सर, जी सर्विस से पहले अगर ऐड करा लिया वो कंटिन्यू रहेगा। जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू। पुष्कर सिंह जी जल्दी से पूछ लीजिए, चलिए आप भी, अब बस अब आप कोई प्लीज हाथ मत उठाइएगा। पुष्कर सिंह जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर जैसे ये म्यूट हो गया। पुष्कर सिंह जी आप कहाँ चले गए? सॉरी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जैसे आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में है कोई एम्प्लॉय परमानेंट है और उनकी वाइफ कॉन्ट्रेक्चुअल है या डिलीवरीज में है, तो क्या वो मेडिकल में उनको ऐड करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ओके, उसमें सर कुछ वो लिखा होता है ना 2000-3000 पर मंथ नहीं देखिए, हस्बैंड से अगर ज्यादा होता है, वाइफ में से दोनों में से कोई एक क्लेम ले सकता है। अब वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो, परमानेंट हो, तो भी ले सकते हैं ना। अब सपोज मैं हूँ, मेरी वाइफ कहीं वर्किंग है या कॉन्ट्रेक्चुअल है या एडहॉक टीचर है, सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो क्लेम तो मैं ले रहा हूँ ना, वाइफ मेरी क्लेम नहीं कर रही है, वो ले सकती है। जी। और सर आपने जो बोला था, एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन, मतलब अगर कोई लेडी अगर वर्किंग है तो वो दोनों को, पेरेंट्स को भी और इन लॉज को, दोनों को रख सकते हैं? बिल्कुल, दोनों में से किसी एक को। जैसे अभी वो क्वेश्चन था ना, उन्होंने बोला था डेथ हो गई है, डेथ होने के केस में वो पेरेंट बदल गए ना, वहां पे वो डेथ के केस में था ना, जो अभी उन्होंने बोला था वो डेथ हुई है शायद उनके इन लॉज की, जो बोल रहे थे। अभी एक क्वेश्चन पूछा, दोनों में से किसी एक को एक बार ऑप्शन होता है, ऑप्शन उसको एक बार देना है, सर्विस में एक बार ऑप्शन देना है, ऑप्ट करना है। थैंक यू सो मच सर। जैसे हम डिक्लेरेशन देते हैं ना, वन टाइम डिक्लेरेशन है, वन टाइम डिक्लेरेशन आपकी सर्विस रिकॉर्ड में वो मेंशन हो जाएगा। जी यस सर, एक्चुअली मैं इसीलिए पूछ रहा था सर, क्योंकि मेरी वाइफ भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रेक्चुअल है जी। तो यहाँ अभी मेरी जॉब हुई है नहीं, तो मुझे यहाँ देना है, तो मैं वाइफ का मेडिकल में नाम दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हैं जी, आप बिल्कुल फ्रीली आप क्लेम कर सकते हैं वाइफ का, क्योंकि वो मेडिकल का रिम्बर्समेंट उनको नहीं मिल रहा है, तो आप उनकी जगह लेंगे, आप उनका LTC भी लेंगे, आप उनका मेडिकल भी लेंगे, आप सारे बेनिफिट लेंगे जो बीइंग एम्प्लॉय आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। सो दैट्स ऑल वी हैव टाइम फॉर, एंड मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ऑब्वियसली दिस वाज इंटरेस्टिंग, दिस वाज यूजफुल, दैट्स व्हाई वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस एंड वी स्टिल हैव मोर क्वेश्चंस। मे बी सर दोबारा आएंगे तो आप लोग और सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। कल हम सब लोग जो हैं वो ऑनलाइन ही मीट करेंगे, नन ऑफ अस वुड मीट इन द फिजिकल मोड, ऑल ऑफ अस वुड बी जॉइनिंग ऑनलाइन टुमारो। Yes, both the sessions would be there, absolutely, but they would be online, right? Owing to some reason here. Ji. Haan ji. Yes. So that's all I had to tell you. So see you tomorrow. And thank you for joining today, and thank you for your question and participation. Have a good evening ahead.